Yes, so Pratik Bhai is setting up his camera and mic, so we'll wait for another minute for that. Hello? Pratik Bhai, you're not audible. I can see you, but you're not audible. Hello, am I audible Yeah, now? yeah, we can hear you. Yeah. Uh, yeah, you're perfectly Okay, okay. audible and visible. Net speed is right, okay? With that, yeah, Okay, okay. it's perfect. With that, we are good to go. Pratik, if you can just shoot up the Okay, presentation. now, good evening, everyone. How many are there? How many are currently live now? There are 42 people in this Okay, okay, meeting as okay, of okay, now. okay. Nice, nice. More will Fine, be joining. fine, fine. So, good evening, everyone. And सब अच्छे होंगे लग रहा है अभी तो लॉकडाउन चल रहा है ना everyone understand Hindi right or there are someone for whom I will talk in English. Uh, Everyone is perfect in Hindi. okay, if we can get a raise of hands, if everybody is Okay, comfortable okay, with. yes. Anyone who is not comfortable with Hindi can say Yeah. because to express my feeling in a good way, I need to speak in Hindi, right? Okay. So everyone is perfect with Hindi. Okay, 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 fine, fine. Yeah, I think everybody is good with Hindi. Okay, okay, Yeah. okay. So okay, we can start with this, okay, right? Wait a second, Pratik Bhaiya. Swastik is supposed to, I think, shoot up the presentation, or are you going to present the No, screen? no, I will share my screen. Okay, okay. Okay, so let me start with a brief introduction. Good evening, everyone, and welcome to the first webinar of Ace the Race series by AICHE NIT Rourkela Student Chapter. In today's webinar, we have with us Pratik Kumar Patra. All you guys know him. That's only why you have joined this meeting today. He is a final year student of Chemical Engineering Department at NIT Rourkela and has secured an All India rank of 14 in GATE 2021. So yeah, without much ado, let's hear from the man himself. Pratik Bhaiya, please take over. Actually, you have disabled my screen sharing option. Okay, Swastik, please look into this. Yeah, I have given the permission right now. You can try it. Yeah. Are you able to present the screen now? Yes, yes, yes. Cool. Okay, now it's visible. Yeah, the screen is visible. Okay, right. So first I will be telling you something about GATE. Okay, कि ये GATE है क्या actually जो first year में होंगे. Some students are in first year, right? First year students are also there. Hello. Hello. Yes, Bhaiya, yes. There are first year students as well. First year, yes. Okay, okay. So for first year students, let me give you some brief about GATE. What is the GATE exam? Okay. ये गेट एग्जाम जो है ये तुम फोर्थ ईयर के एंड में दे सकते हो. अभी रूल चेंज हो गया तो थर्ड ईयर वाले भी दे सकते हो. ओके. तो मैं अभी जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें दूंगा जो भी बताऊंगा तो ये बहुत होंगे थर्ड ईयर के लिए और फोर्थ ईयर के लिए. ओके. तो ये गेट एक्चुअली देते हैं पीएसयू जॉब के लिए, हायर स्टडीज के लिए, और जो कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो प्रोफेसर हायर करते हैं उनके लिए भी देते हैं. गेट देना नेसेसरी है. मीन्स यू कैन से दैट एनीथिंग यू वांट टू डू after BTech in which private players are not participating, means these all are related to government jobs. Okay, either government jobs or government projects, or you want to study in government colleges, IITs, ISCs. So you need to give this gate. Anything you want to do in government sectors, you have to give this gate exam. Okay. So in gate exam generally we have aptitude questions and our technical questions in which
20 to 25 marks are there in aptitude and maths, and rest are of chemical engineering questions. Okay, so भैया under प्रतीक भाई, say मतलब ये थोड़ा प्रेजेंटेशन छोटा दिख रहा है, कैन यू स्टार्ट okay द okay हाँ हाँ स्लाइड शो? full screen इसका फ्रॉम करंट स्लाइड वो ऊपर जो है that will work. इसमें तो नहीं है, यही होना चाहिए. वेट वेट Yeah, that button. Yeah, this. ओके फाइन. हाँ सो हाँ तो ये पीएसयू के अंदर क्या क्या आता है? पीएसयू के अंदर सब जॉब्स आते हैं जितने सब पब्लिक सेक्टर्स हैं, लाइक योर वेल विच इज भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक, ओएनजीसी, सेल इज देयर इन राउरकेला ओनली, and HPCL, NTPC, Coal India. These all are PSUs, and these are BHEL is in electrical sector, heavy electronic sector, ONGC is in petroleum sector, and like this in atomic sector also, atomic energy sector, in coal sector, in all other fertilizer sector. These are only some of the logos of company which has been shown, but there is almost 50, almost 30 to 40 PSUs company which hires chemical engineering students. Okay, and now you must be wondering, these all are privatizing. Okay, government is privatizing all these sectors, but the company remains same. Okay, even if they are getting privatized, either they will conduct their own exam or they will hire through GATE. So if they will conduct their own exam, then also the exam pattern will be like GATE only. So if you prepare for GATE, then obviously you will be preparing for those. Okay, so their syllabus will be more or less same. So like NTPC is this year NTPC is conducting its own exam, but their syllabus is more or less same. Okay, so if you again prepare for, if you prepare for GATE, then you will be all be simultaneously prepare for these companies also. Okay, Coal India conducted its own exam in 2020, but this year it will hire from GATE to 2021 score. Okay, so what are the benefits of PSUs? You must all be knowing. So the average package which a Maharatna company gives, Maharatna means the largest companies which are under government, they give you 15 to 20 lakhs CTC. Okay, joining will be around 60 to 80,000, and after your training program of 1 year, they will give you 1.2 to 1.5 lakhs. Okay, you can see how much how big it is. Okay, the amount is how big it is, and plus government job securities, तुम्हें कोई निकाल नहीं पाएगा. ओके, सब जितना भी खराब काम करो, अच्छा काम करो, प्रमोशन तो होगा नहीं अगर बुरा काम किए, लेकिन कोई निकाल नहीं पाएगा. ओके, गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटीज है. और except these, okay, you will say, okay, government job are sluggish job, we don't like it. These are all jobs, we can say सब इसमें सब मेट्रो कंपनी, मेट्रो जगह पे होते नहीं है. कोल इंडिया कहीं माइंस में होगा, एनटीपीसी कोई अनगुल में होगा, कोई ओएनजीसी, आईओसीएल, पता है ना, नालको कहाँ है, दामोजोड़ी में, कोरापुट में. तो ये सब जगह पे होता है पोस्टिंग. लेकिन ये सब छोड़ के भी अगर तुम अच्छा जॉब चाहते हो जो पीएसयू ना हो, लाइक बार्क होता है तुम्हारा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. ओके, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब है इंडिया में. जितना भी 1 करोड़ दे दे कंपनी, 2 करोड़ दे दे, लेकिन जो जो इज्जत ये तुम्हें देगा ना, कोई नहीं दे सकता. ओके, यू विल गेट ए वाइट पासपोर्ट. ओके, क्या हुआ था कि फर्स्ट ईयर, आई विल टेल माई स्टोरी इन बिटवीन सम ऑफ द स्लाइड्स. ओके, वन ऑफ द स्टोरी इज दिस. जब फर्स्ट ईयर खत्म हुआ था मेरा, तो बार्क से एक मैडम आई थी. ओके, टीआईआर में उनका एक प्रेजेंटेशन था, तो वो बता रही थी कि हमें व्हाइट पासपोर्ट मिलता है. Okay, there are 3 type of passport. For normal citizens, there is something red, I guess, blue or red, I guess, I don't know. For diplomat is red, and for government representatives, okay, means scientists and who represent government in technical sectors, they get a white passport. Okay, and ये white passport का क्या होता है, मतलब इसमें तो इज्जत की तरह है, समझे ना. तुम अगर एयरपोर्ट पे जा रहे हो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने किसी और देश को, तो तुम्हें लाइन पे खड़ा नहीं होना पड़ेगा.
you will be given a different gateway through. Okay, तुम्हें एक तो स्पेशल क्या बोलते हैं, इज्जत दे दे के ले जाते हैं विदाउट एनी चेकिंग, विदाउट एनीथिंग. ओके, सो यू फाइट पासपोर्ट, यू विल गेट ए फाइट पासपोर्ट. ओके, सो ये बार्क होता है, इसरो होता है, DRDO होता है, ये सब केमिकल इंजीनियर्स को हायर करते हैं. ओके, सो ये सब बार्क का क्या होता है कि तुम्हें गेट एग्जाम के थ्रू इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है, और उसका अपना भी एग्जाम होता है. तो ऐसा हो गया, NPCL का भी हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी गेट के थ्रू लेता है. ओके, सो ये सब है PSU के अंडर, ये सब आते हैं, बहुत सारे जॉब होते हैं. मैं बताऊंगा एक एक करके बाद में. ओके, ये सब छोड़े. और फिर है हायर स्टडीज. ओके, गेट के लिए तुम कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो बीटेक के बाद इंडिया में. इफ यू वांट टू गेट ए स्टाइपेंड, you have to give a valid GATE score to that college. Okay, so तुम डायरेक्ट PhD करो, MTech करो, MS करो, जान पहचान से करो, जो भी करना है करो, तुम्हें गेट स्कोर चाहिए ही चाहिए. विदाउट गेट स्कोर यू विल नॉट गेट ए स्टाइपेंड. ओके, एंड MTech के लिए स्टाइपेंड है 12,000. ओके, MTech के MS के लिए 13,000 पर मंथ, and for PhD you will get 31,000 per month. Okay, so for all these things you will have to get a valid MTech GATE score. Okay, so so for IITs, for MTech in IITs, they will obviously in top IITs like IIT Bombay, IICs, IIT Madras, IIT Kanpur, IIT Delhi, these 4 to 5 IITs which are well established in their fields, they will obviously give you more job opportunities than you will get here in NIT Rourkela. Okay, so the first you can say that job opportunities are obviously much greater. You can't say that it's 100% like computer science, but it's obviously it is greater than NIT Rourkela what you will be getting here in end of the 4th year. Okay, so top IITs have more job opportunities as well as more research facilities. Obviously they consist of greatest mind of all professors are there, greatest minds are there in that institutes. So obviously the kind of exposure you will get there in research facilities, research fields, okay, it will be immense. Okay, so if you want to get admission in MTech, MS or integrated PhD or direct PhD, you have to give GATE. Then okay, after what जॉब के अलावा और क्या होता है वहाँ? जॉब के अलावा ये होता है कि तुम्हारा जो प्रोफेसर के साथ जो कॉन्टेक्ट्स रहते हैं एब्रॉड प्रोफेसर के साथ, तो वो बहुत हेल्प मिलता है तुम लोग को अगर तुम लोग डायरेक्ट उसके MTech के बाद PhD करना चाहो. Okay, if you want to get a PhD from abroad, so you need to have a contact, right? If you have a good contact, then obviously the path becomes very easy. Okay, so if you get a good MTech in a good IIT, then it will obviously help you in getting a PhD in a good colleges. Okay, right? So then third point is if you want to go in a interdisciplinary sector, right? Means if you want to pursue your career in nanotechnology, thermal sciences, aerospace, quantum, catalyst, I can give you a list of names. Okay, like petroleum and right, like pharmaceuticals, in energy sectors. So there are interdisciplinary sector in which you can do your masters, so that in that field you can pursue your career, right? In energy sector, I think it is much possibilities that this year Tesla is coming, right? धीरे धीरे ये अपना R&D भी निकालेगा, तो वो R&D जाएगा, मतलब ये एनर्जी सेक्टर से ही बच्चे लोग को उठाएगा, राइट? ये तो आने वाला नहीं है NIT राउरकेला से केमिकल बच्चे लोग को लेने के लिए नहीं आएगा ना. वो आएगा तो एनर्जी साइंसेस जो होगा MTech या PhD किए होंगे, जो मास्टर किए होंगे IIT बॉम्बे से, IISc से, उन्हीं से लेगा, राइट? सो इफ यू वांट टू गो इन इंटरडिसिप्लिनरी सेक्टर which are somewhat related by chemical, but it's interdisciplinary sectors are those sectors which are not totally related in chemical, but you can say that some of those portions are related to chemical engineering, right? Like if you go to catalyst engineering, if you do in MTech in catalyst engineering, so CRE is related to it, chemical reaction engineering. If you go for thermal sciences, then fluid and heat transfer related. If you go for aerospace engineering, then our fluid mechanics is related, right? So these are the things. And the fourth point, which is a little bit silly, okay, this is have a dream to study in IIT, okay, but couldn't do to less rank in JEE. Okay, सबका तो सपना होता है ये IIT में जाने के लिए, सबका ही तो होता है. यहाँ तो NIT राउरकेला में बाई चांस पहुंच गए होगे, बिकॉज यू कांट क्रैक IIT. सो NIT राउरकेला किसका तो होता नहीं है चॉइस, सबका तो IIT होते हैं. IIT नहीं पाने से NIT राउरकेला आते हैं.
सो अगर तुम चाहते हो कि सपना रह गया आईटी में पढ़ने का, आईटी बॉम्बे में पढ़ने का, आईआईटी कानपुर में पढ़ने का, तो दिस इज ए गुड चांस. ओके, यू कैन गिव योर 2 years to IIT. You can go there, stay there, pursue your dreams there. Okay, you can get good opportunities, I say. हाँ, JRF एक्चुअली क्या होता है, ये सब क्या होता है कि तुम्हारा इंटर्नशिप जो होते हैं वो 2 महीने का होता है, 3 महीने का होता है, और वो सब जनरली आइदर स्पॉन्सर प्रोजेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं. लेकिन जो JRF में जो प्रोजेक्ट मिलते हैं वो सब सारे स्पॉन्सर प्रोजेक्ट मिलते हैं. ओके, टाइम मिले तो गूगल में चेक करना कि JRF होते क्या है. JRF होते हैं कि सभी प्रोफेसर को क्या होता है कि प्रोफेसर अपना जो कुछ समझ लो कि DRDO को कुछ एक रिसर्च करना है, तो वो DRDO खुद नहीं करता है. वो DRDO क्या करता है कि वो जो प्रोफेसर वो जो रिसर्च फील्ड में ऑलरेडी है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो उसको पास ऑन कर देता है. वो प्रोफेसर क्या करता है कि अपना फॉर्म निकालता है कि मैं ऐसे हायर करना चाहता हूँ स्टूडेंट को ये प्रोजेक्ट के लिए 1 साल के लिए, जिसको जिसको इंटरेस्टेड है अप्लाई करो. राइट, सो उसके लिए भी गेट स्कोर चाहिए. ओके, क्योंकि यहाँ तुम्हें स्टाइपेंड मिलने वाला है 32,000 का, 32,000 का स्टाइपेंड मिलने वाला है. तो ये JRF भी एक तो अच्छा चीज है. यू कैन सर्च इट इन. ओके, इन दिस अभी करेंटली IIT गांधीनगर में एक तो पोस्ट निकला है. ओके, जो ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसे बीटेक स्टूडेंट, बीटेक एमटेक चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जिससे मेटलेब आता हो, थोड़ा सा इंटरेस्ट हो. ओके, तो ये स्पॉन्सर्ड रिसर्च में तुम्हें हायर कर सकते हैं. राइट, तो ये JRF भी एक तो अच्छा चीज है, जिसे चाहिए कि हाँ थोड़ा सा अभी जॉब जॉब के लिए भी बहुत बेनिफिट होता है. ये तुम्हारा जो रिसर्च चीज है, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस जो गेन होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है. तो सब तो जान ले होंगे क्या क्या चीज है गेट के लिए, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है. ओके, लेकिन ये गेट क्रैक करना डिफिकल्ट कितना है, हाउ डिफिकल्ट इज क्रैकिंग गेट. ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना प्रिपरेशन चाहिए, प्रिपरेशन कितना चाहिए कि अच्छे तो अच्छा रैंक आ जाए. ओके, तो ये थोड़ा थोड़ा स्टैट्स है जो मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ. जेई मेन में एस्पिरेंट्स कितने होते हैं, 8 to 10 लाख. राइट, और केमिकल इंजीनियरिंग का मेरा जितना रैंक था, मैं बोल रहा हूँ मेरे टाइम में मेरा था 22,000. राइट, तो तुम्हें अराउंड 20,000 चाहिए NIT राउरकेला में इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में सीट पाने के लिए. तो इफ यू कैलकुलेट द रेशियो, इट्स समव्हाट अराउंड 0.02. राइट, इट्स रेशियो नॉट परसेंटेज, इट्स रेशियो. 0.02 रेशियो इज देयर. ओके, सो अभी गेट का देखते हैं, गेट का नंबर ऑफ एस्पिरेंट कितने हैं केमिकल इंजीनियरिंग में. नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इन केमिकल इंजीनियरिंग, ओके, 17,000. PSU के लिए तुम्हें रखना पड़ेगा अराउंड 100 to 150 के नीचे. ओके, और IITs के लिए समवट अराउंड 350, 400, 300. राइट, सो चांसेस ऑब्वियसली ज्यादा है. ओके, 0.024 ज्यादा है, लेकिन नियरली ये दोनों सेम है. लेकिन तुम्हें तो बेनिफिट ये मिलेगा कि कोई भी IIT बच्चा जो बीटेक अपना IIT में किया है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं एमटेक भी IIT में करूं. राइट, और वो इतना मेहनत भी नहीं करना चाहता गेट दे के कोई PSU में जाए. उन्हें उतना मेहनत में माइक्रोसॉफ्ट भी मिल जाता है. राइट, हम लोग को तो माइक्रोसॉफ्ट बिठाता नहीं है केमिकल बच्चे लोग को. ओके, बहुत सारे कोडिंग आते हैं जो बड़े बड़े कंपनी केमिकल बच्चे लोग को बिठाते नहीं है. लेकिन IITs में क्या होता है कि सबके लिए ओपन रहता है वो सब. ओके, तो जो भी ज्यादा मतलब केमिकल के बच्चे हैं उन लोग ज्यादा कोर सेक्टर से जाते नहीं. अराउंड 30% गो फॉर कोर सेक्टर्स एंड रेस्ट ऑफ देम गो फॉर नॉन कोर सेक्टर्स. राइट, सो IITians कोई भी देते नहीं है गेट. मैक्सिमम मीन्स में ये नेग्लिजिबल हो सकता है 10-15 दे दें, लेकिन IITians देते नहीं है. NITians देते हैं, कुछ देते हैं, ज्यादा नहीं. NITians कुछ देते हैं, ज्यादा नहीं. जैसे कि हमारे बैच में ही देख लो कि इतने जन पढ़ रहे थे, 2-3 बच्चे पढ़ रहे थे, उन्होंने रैंक लाया. वैसे ही सभी NIT में गिन लो कितने होंगे, 10, 15, 20, 30 मैक्स, इतने NITians देते होंगे. राइट, और बाकी जितने भी देते हैं मैक्सिमम प्राइवेट बच्चे देते हैं, प्राइवेट कॉलेज के बच्चे देते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे देते हैं. राइट, तो तुम्हारा जो कंपटीशन है मेनली इन्हीं के साथ है. राइट, जो भी जेई मेन में अच्छा रैंक नहीं लाया था, 50,000, 80,000, जो भी स्टेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तुम्हें उनके साथ कम्पीट करना है. तो कंपटीशन इतना टफ नहीं होता है, कंपटीशन इजी होता है. राइट, थोड़ा सा प्रिपेयर करोगे यू कैन क्रैक इट इजी. राइट, बहुत इजी होता है, मतलब कंपटीशन बहुत इजी होता है. पढ़ाई के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कंपटीशन इजी होता है. कंपटीशन ऐसा नहीं है कि IITians के साथ तुम्हें कम्पीट करना है. ऑब्वियसली यू हैव टू एडमिट दैट दे IITians हैव ग्रेटर IQ. राइट, दे हैव ग्रेटर सॉल्विंग कैपेबिलिटीज. सो अगर उनके साथ कम्पीट होता तो तुम्हें लगता है कि हाँ क्यों देना है फिर से,
प्रॉब्लम, वही बच्चे लोग तो स्कोर करेंगे, हम लोग के लिए कुछ रहेगा नहीं। लेकिन ये अच्छा है कि गेट में कि आईआईटियंस देते नहीं है, राइट। एनआईटियंस कुछ बच्चे देंगे और मैक्सिमम देंगे स्टेट बच्चे और प्राइवेट बच्चे। और इंटरेस्टिंग चीज मैं बोल रहा हूँ अभी, मैक्सिमम जो पीएसयू होते हैं, बार्क का सीट्स होते हैं, कि जितने भी अच्छे अच्छे चीज होते हैं सभी में एनआईटियंस कुछ हद तक और मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट के बच्चे जाते हैं, राइट। आईआईटियंस बहुत रेयरली जाते हैं, समझे। तो ऐसा नहीं है कि बार्क में अभी तुम जो साइंटिस्ट देख रहे हो वो सब आईआईटियंस है, राइट। आईआईटियंस जाते नहीं है, बिकॉज एक बार कोई आईआईटी पा जाता है ना तो अंदर से आ जाता है कि हाँ अभी तो सब हो गया तो अभी पढ़ना क्यों है, राइट। तो उन लोग गेट देते नहीं है या उसके लिए प्रिपेयर होते नहीं है इतना। तो उनके जितने सब अच्छे अच्छे चीज है इंडिया में, इसरो हो गया, बार्क हो गया, नहीं जाते हैं उन लोगों के, ये सब फैक्ट्स हैं, नहीं जाते हैं। बार्क में सीट्स होते हैं 22 हर साल, 20 से 22, राइट। तो उसका ऐसा होता है कि गेट से इंटरव्यू के लिए क्लियर करोगे, फिर इंटरव्यू में होगा सिलेक्शन तुम्हारा 100% इंटरव्यू स्कोर। और बाकी जो पीएसयू होते हैं उसका क्या होता है कि 70% गेट स्कोर होता है और 20% इंटरव्यू एंड 10% जीडी, राइट। तो जितने सब तुम्हारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो सब तुम्हें प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू सिलेक्ट करेंगे। और जितने सब तुम्हें जो पीएसयू जॉब्स हैं, ऑयल सेक्टर हो गया, फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया, वो 70% या 80% लेंगे गेट स्कोर, और 10-20% तुम्हारा इंटरव्यू और जीडी रहेगा, right? हाँ। तो अभी प्रिपरेशन कैसे किया जाए, ओके। प्रिपरेशन कैसे किया जाए, तो एक सेकेंड। अगर किसी को कुछ मिडिल बीच में बोलना हो तो बोल, मतलब यू कैन इंटरफेयर, ओके, यू कैन इंटरफेयर एंड आस्क। सो अभी मैं तो अपना अपना बारे में बोल रहा हूँ, जो मैंने कैसे स्टार्ट किया था, राइट। तो एज यूजुअल सबकी तरह मैं जब आया तो ऐसे था कि अभी एनआईटी में आ गए हैं तो अभी और क्या चाहिए, अभी तो सब लाइफ सेट है, सबके दिमाग में होगा, फर्स्ट ईयर में सब ऐसे ही सोचते हैं। तो पढ़ाई लिखाई तो होता नहीं था, तो सीनियर के साथ बात करते थे तो बोलते थे कि एनआईटी आ गए हो, यहाँ कोई पढ़ता नहीं है, राइट। तो हम बोलते हाँ सही बात है, यहाँ कौन पढ़ेगा, इतना इतने पढ़ लिए 11-12 में, अब कौन पढ़ता है। तो पढ़ाई लिखाई किए नहीं फर्स्ट सेमिस्टर, फिर फर्स्ट सेमिस्टर मार्क खराब आया तो पता चला कि हाँ थोड़ा तो पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। तो बाकी की तरह मैं भी क्लब एक्टिविटीज में था बहुत सारे में, टेक्निकल नहीं, नॉन टेक्निकल। मैं क्रिकेट में था, आधा टाइम मेरा उसमें चला जा रहा था, आधा नहीं आधा से ज्यादा उसमें चला जा रहा था। फिर मैं तो वो क्या पॉलिटिकल क्लब है, कॉग्निजन, नहीं क्या था भूल गया मैं, उसमें था मैं। और एक कोडहम में था, मैं वेब डेवलपमेंट सीख रहा था, समझ, वेब डेवलपमेंट सीख रहा था मैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग मुझे पता नहीं था उस टाइम क्या है एक्चुअली, किसी को पता नहीं होगा फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में देयर आर नो सब्जेक्ट व्हिच आर रिलेटेड टू केमिकल इंजीनियरिंग। केमिस्ट्री इज देयर बट इट्स नो वे रिलेटेड टू केमिकल इंजीनियरिंग, ओके। तो पता नहीं था केमिकल इंजीनियरिंग होता क्या है। तो पढ़ते थे वैसे ही, थोड़ा एग्जाम के एक वीक पहले पढ़ते थे, बाकी पूरा टाइम फील्ड में या दोस्तों के साथ घूमते थे, आवारागर्दी करते थे, कुछ नहीं। और वेब डेवलपमेंट सीख रहा था मैं उस टाइम, फ्रंट एंड सीख रहा था मैं। तो उस टाइम मैं घर पे भी इतना हंसी आता है, घर पे मुझे पापा बोलते थे कि पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, मैं बोलता था कि यहाँ पे पढ़ता नहीं है। तो घर में बोलते थे हाँ ठीक है सही बोल रहे बेटा, इतना बड़ा कॉलेज में गया है तो जो बोल रहा है सही बोल रहा होगा। तो मैं बोल रहा था कि ऐसे पर्सनैलिटी ग्रो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पढ़ता कोई नहीं है। तो फर्स्ट ईयर के बाद मुझे जब रियलाइज हुआ कि जो जो सीनियर मुझे बोल रहे थे कि यहाँ कोई पढ़ता नहीं है, वो सब अपने अपने बैच में टॉपर्स थे। और किसी का प्लेसमेंट डीआरडीओ में हो रहा था, पिछले साल हम लोग का 2020 बैच में डीआरडीओ आया था प्लेसमेंट के लिए। तो किसी का प्लेसमेंट डीआरडीओ में हो रहा है, किसी का गोल्डमैन सैक्स में हो रहा है, किसी का माइक्रोसॉफ्ट में हो रहा है। तो पता चला कि नहीं, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, बिना पढ़ाई के होगा नहीं। ये सीएस ब्रांच नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच नहीं है कि कोडिंग कर लिए निकल लिए अच्छे अच्छे कंपनी में। ये कंप्यूटर साइंस है, केमिकल इंजीनियरिंग है, यहाँ तो पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम ऐसा कुछ जॉब करोगे जिसके लिए तुम कभी सोचे नहीं थे कि मुझे करना है। तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा तुम्हें। अगर अच्छे जगह पे जाना है इसके बाद तो अच्छा पढ़ाई करना पड़ेगा, यू हैव नो अदर ऑप्शन, ओके। अभी मैं बोल रहा हूँ, ये प्रिपरेशन के बाद में बोल रहा हूँ, अभी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे रहा हूँ। इस साल का प्लेसमेंट में बोल रहा हूँ, हमारे बैच का 5 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड इन एक्सन मोबिल। कितना दे रहा है एक्सन मोबिल? 10.8, राइट।
वो भी इस साल 5 लिया, हर साल लेता है 2-3, इस साल 1, तो इस साल हाईएस्ट लिया है 5। बिसाइड एक्सन मोबिल और क्या क्या आता है? हाँ, और कुछ नहीं आता है जो 10.8 दे सके। उसके नीचे कौन आता है? वेदांत आता है। कितना देता है? 8 लिखा था, लेकिन जो प्लेस है वो मुझे बोल रही थी वो बस 8 लिखा है, वो काट कुट के कुछ मिलता नहीं है, उसमें 5 to 6 लाख मिलेगा कि 6.2 6.5 उतना मिलेगा। टैक्स कट जाता है तुम्हारा, वहां रहोगे वहां वो फीस कट जाता है, माइंस में काम करोगे तो उनका इंश्योरेंस ज्यादा होता है, वो कट जाता है, समझे? तो 6.2 था। फिर सेकंड कौन हाईएस्ट दिया? फिर 1-2 कंपनी है जो 6 दिए, 6 लाख। ओके, वो भी काट के कुछ इंश्योरेंस इंश्योरेंस सब काट के, पीएफ काट के कुछ मिलता है 5 के आसपास। लिंडे आया था, कितना दिया? 5। ऐसे करके आरती आया था, आरती कितना दिया? 5। ओके, तो तुम कभी भी सोचोगे जब ज्वाइन कियोगे एनआईटी राउरकेला कि मुझे 5 लाख का नौकरी करना है इसके बाद? ओके, कोई भी सोचा होगा? बी ऑनेस्ट। ओके, कोई भी सोचा होगा कि 5 लाख का जॉब करना है इसके बाद? क्योंकि हमारा जो अभी जो जेई के लिए हम जब आईआईटी के लिए जब प्रिपेयर होते हैं, उसी समय हम लोग का 2 साल में 6 से 7 लाख खर्च हो जाता है कोचिंग सेंटर्स में। मैं अपना बोल रहा हूँ, मैं घर छोड़ के, मतलब मेरा घर बालेश्वर है लेकिन मैं भुवनेश्वर आया था, तो वहाँ का रहना खाना स्कूलिंग कोचिंग सब मिलके मेरा हो गया था 2 साल में 5 लाख। अभी वो अमाउंट बढ़ गया हो गया वैसे। तो तुम कभी सोचे हो कि जितना मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए दे रहा था उतना ही मुझे मिलने वाला है 5-4 साल के बाद? कोई सोचा नहीं होगा आई गेस। कोई अगर सोचा होगा तो मुझे बोल देना, मिलना चाहूंगा उसके साथ। ऐसा क्यों होता नहीं होगा? क्योंकि हम लोग जब कुछ भी अगर जब रिकॉर्ड देखते हैं, डाटा देखते हैं, तो हम मैक्सिमम टाइम जो एवरेज होता है ना, वो सब सीएस और इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किटल ब्रांच होते हैं ना, उसके लिए उनका बढ़ जाता है। समझ ले कि जैसे एनआईटी राउरकेला एवरेज है 6-7-8 लाख एवरेज है, तो उसमें से तो मैक्सिमम जो अमाउंट है वो सब तो सीएस बीएस ले जाते हैं। सीएस का 14 लाख 15 लाख एवरेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स का वैसे 10-12 लाख एवरेज है। तो वो सब ब्रांच के लिए हम लोग का जो ओवरऑल जो कॉलेज का एवरेज पैकेज है वो बढ़ जाता है। लेकिन तुम एज ए अगर केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का अगर तुम देखोगे तो इतना भी कोई खास मतलब अट्रैक्टिव नहीं है, समझे? मतलब इतना प्लेसमेंट के लिए ऑब्वियसली तुम जेई के लिए इतने या आईटी एडवांस के लिए इतने मेहनत नहीं किए होगे। तो अगर तुम सोच रहे हो कि मैं इधर एनआईटी में आ गया हूँ सब सेट है, तो सरप्राइज मिलने वाला है तुम्हें थर्ड ईयर में। सरप्राइज कैसे मिलेगा? मैं अपना बोल रहा हूँ। जब मैं आया था नेटवर्क तो सब बोल रहे थे कि व्हेन यू आर इनटू एनआईटी ब्रांच डजंट मैटर, ओके, सब ब्रांच इक्वल होते हैं। तो मैं बोला हाँ सब ब्रांच इक्वल होते हैं, मान लिया मैं कि हाँ होते तो हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, एक साथ क्लास हो रहा है। फर्स्ट ईयर में एक साथ क्लास होता था ना, तो हाँ मान लिए सब एक साथ बैठ रहे हैं, सब एक साथ होता है। जब थर्ड ईयर जब इंटर्नशिप के टाइम आया तो यू विल नॉट बिलीव सर्किटल ब्रांच के अलावा सिर्फ 1-2 थे, 1-2 मतलब सर्किटल ब्रांच और नॉन सर्किटल ब्रांच। सर्किटल ब्रांच के अलावा सिर्फ 1-2 थे जिन्हें ऑन कैंपस इंटर्नशिप मिला, 1-2। मेटलर्जी में 1-2 मिले, वो भी उनका कुछ स्पेशल कुछ प्रोग्राम होता है वुमेन ऑफ मेटल करके कुछ, वहां से 1-2 मिले। और शायद आदित्य बिल आया था, वो 1-2 लिया था, केमिकल से एक लिया था, मेटल से एक लिया था, तो ऐसा मिलता है। वाह, तो सोच लो मतलब कंडीशन कैसा है। तो उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं बेटा ये तो गलत चल रहा है, समझे ना? जो सोच के हम लोग को जो पढ़ाया गया था कि ऑल आर इक्वल, ये तो कोई इक्वालिटी है नहीं। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट आता है 12 बच्चे लोग को इंटर्नशिप के लिए लेके जाता है, हमारा कोई आ नहीं रहा है। तो पता चला कि भाई फ्रॉड तो हुआ है हमारे साथ। मतलब फ्रॉड ऐसा नहीं है कि कॉलेज किया है, ये एक्चुअली माइंडसेट है जो हम लोग को पहले से ही दे दिया जाता है, ताकि हम लोग और मतलब लाइटली ले लें सब चीज को, पढ़ाई करते नहीं है कोई। फिर लास्ट को क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, लास्ट में क्या होता है, जब प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होता है वह, तो क्या करते हैं कि ले लिए कुछ कोर्स, ले लिए पाइथन का कुछ कोर्स ले लिए। कहाँ से लेते हैं पाइथन का? कोर्सेरा है, यूडेमी है, कुछ एक तो पेड कोर्स ले लिए। फिर बैठ गए डिलॉयट में, इंफोसिस में, टीसीएस में, और कौन कौन है, हजारों एनालिटिक्स कंपनी आ रहे हैं। जॉब्स बहुत आते हैं, वो एनआईटी राउरकेला में जॉब्स बहुत आते हैं, 100% प्लेसमेंट होता है। लेकिन यू हैव टू सी कि किस तरह का जॉब आता है। वैसा जॉब तुमने सोचा था क्या जेई के टाइम कि मैं इतना इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे इंफोसिस में जाना है, डिलॉयट में जाना है? डिलॉयट इज गिविंग वेरी गुड अमाउंट, 8 लाख इट इज गिविंग, ओके। 8 लाख कम नहीं होते ज्वाइनिंग में, 8 लाख अच्छा है। लेकिन तुम कभी सोचे थे क्या डिलॉयट में जाना पड़ेगा? केमिकल इंजीनियरिंग क्यों जा रहे हो कि डिलॉयट में जाना पड़ेगा? देखो थिंकिंग अलग अलग हो सकते हैं,
मेरा थिंकिंग ये है कि अगर तुम कुछ कुछ कर रहे हो तो अच्छे से करो। इसलिए मैं अभी फर्स्ट सेंटेंस वही लिखा हूँ कि इफ यू डोंट हैव इंटरेस्ट इन केमिकल इंजीनियरिंग देन स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम हियर। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम मतलब क्या कि केमिकल इंजीनियरिंग के पीछे भागो मत, अलग चीज करो। होता क्या है कि बच्चे केमिकल इंजीनियरिंग भी नहीं पढ़ते, कोडिंग भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। वह एक्चुअली करना क्या है कि तुम अगर देख रहे हो कि केमिकल इंजीनियरिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बकवास चीज है, क्लास में तो ऑब्वियसली अच्छा पढ़ाई नहीं जाता है, तो करना क्या है, चलो कुछ नहीं करते हैं, सीरीज देखते हैं, यही होता है। फिर लास्ट को अगर क्या होता है कि एक महीना, जस्ट इमेजिन हाउ कैन यू compete with CS स्टूडेंट, ओके, with your 1 or 2 month कोर्स इन कोर्सेरा, राइट? जो CS का बच्चा एल्गोरिथम सेकंड ईयर से पढ़ पढ़ के आ रहा है, तुम सोच रहे हो कि तुम उससे कम्पीट कर दोगे एक महीना का कोर्सेरा का कुछ लेके? ऐसा होता नहीं है। अगर केमिकल इंजीनियरिंग नहीं आता है, नहीं करना है, ट्राई समथिंग एल्स, ओके। एमबीए के लिए ट्राई करो, केट एग्जाम दो, जेड दो, कुछ भी करो। यूपीएससी करना है, यूपीएससी के लिए पढ़ो सेकंड ईयर से, थर्ड ईयर से। टाइम वेस्ट मत करो, ओके। अगर करना है कुछ अच्छे से, कोडिंग करना है, अच्छे से कोडिंग करो। ऐसा कोडिंग करो कि गवर्नमेंट सेक लग जाए, ओके। आई एम नॉट श्योर कि गवर्नमेंट सेक नॉन सर्किटल ब्रांच को लेता है कि नहीं, लेकिन बहुत सारे कंपनी आते हैं जो नॉन सर्किटल को बिठाते हैं, राइट? जो कोडिंग प्रोफाइल होते हैं नॉन सर्किटल को बिठाते हैं। हमारा मतलब कोई भी हार्ड कोर कोडिंग जो कंपनीज होते हैं हमारा प्लेस नहीं हुआ है। सब मतलब ऐसे ही सब डिलोइट, मतलब जो ऐसा होता है कि एनालिटिक्स, यही सब में प्लेस होते हैं। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का प्लेस नहीं हुआ है हम लोग के ब्रांच से। रीजन यही है। रीजन यही है कि ना तो हम केमिकल इंजीनियरिंग के लिए सीरियस होते हैं, ना ही हम कोडिंग के लिए सीरियस होते हैं, ना ही एमबीए के लिए सीरियस होते हैं, कुछ के लिए सीरियस नहीं होते हैं। वाह, जैसा चल रहा है चलने दें। फिर लास्ट को 1 महीना 2 महीना होता है, ये करो वो करो, यहाँ से थोड़ा सा पढ़ दो, पाइथन यहाँ से सीख लो, वहां से सीख लो, फिर ले जाते हैं, मास रिक्रूटर आते हैं ले जाते हैं, समझे? तो हाँ, हो गया, ये सब मैं बोल दिया तुम्हें। अभी करना है कि जिन्हें केमिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, या जो सोच रहे हैं कि हाँ टाइम दे सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग को पढ़ने में, तो वो कैसे प्रिपेयर करे। वो जिन्हें लगता है कि केमिकल इंजीनियरिंग इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, उन्हें इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि कॉलेज में ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि तुम्हें इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, समझे? कॉलेज में जैसे पढ़ाई जाते हैं ना, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। मतलब तुम्हारा जो, मैं अपना और एक स्टोरी बोल रहा हूँ। जो फर्स्ट मेरा कॉलेज का फर्स्ट क्लास हुआ, कॉलेज का फर्स्ट क्लास मेरा था मैकेनिक्स का, जो मेरा 11 में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। मतलब शायद 2 साल में सबसे मेरा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट था फिजिक्स का, वो था मैकेनिक्स पार्ट था। तो जब पहला क्लास था मैकेनिक्स एनआईटी राउरकेला में, तो मैं जाके क्या किया कि फर्स्ट बेंच में बैठ गया हुआ कि आज अच्छे से पढ़ना है। वह इतना अच्छा सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट है, देखते हैं एनआईटी राउरकेला में, एनआईटी इतना बड़ा कॉलेज है, क्या स्पेशल, क्या एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। तो यू विल नॉट बिलीव, 15 मिनट में मैं सोने लगा हुआ फर्स्ट बेंच में। तो प्रोफेसर ऐसे बुलाए, ए व्हाट आर डूइंग, यू आर स्लीपिंग? लेकिन नो 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 सर, ओके। तो वो दिन मेरा फर्स्ट एंड लास्ट दिन था एज ए फर्स्ट बेंचर। उसके बाद मैं पूरा लास्ट में जाता हूँ, लास्ट में आराम से सोता हूँ फर्स्ट ईयर, अभी बीटेक में भी। पूरा लास्ट बेंच में बैठो, जो करना है करो। फर्स्ट बेंच में उसके बाद वाले दिन से बैठा ही नहीं। रीजन ये है कि मुझे उनका पढ़ाई पसंद ही नहीं है जो जैसे पढ़ाते हैं। तो अगर तुम भी मेरे कैटेगरी के हो जिसे लगता है कि पढ़ाई अच्छा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा पढ़ाई जाए तो तुम पढ़ोगे, अगर तुम इस टाइप के बच्चे हो, तो आई विल सजेस्ट एनपीटीएल में बहुत सारे क्वालिटीज वीडियो है, बहुत सारे। मैं तुम्हें लिंक ही भेज दूंगा, जिससे इंटरेस्टेड है कॉन्टेक्ट में, ओके। बहुत सारे मस्त मस्त एनपीटीएल के वीडियोस हैं, तुम वो सब देखो, फिर देखना इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है देन लीव इट, ओके। अगर नहीं आ रहा है गिव इट अ ट्राई, अगर नहीं आ रहा है देन स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, ओके। कुछ अलग करो, कुछ कोडिंग करो। अगर सिर्फ मतलब प्रोजेक्ट कुछ कर सकते हो तो वैसे करो, टाइम वेस्ट मत करो। और एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम में क्या है कि तुम अगर ऑन कैंपस में बैठ रहे हो ना, तो कुछ कुछ सियोरिटी नहीं है कि तुम्हारा वो होगा, ओके। तुम ये सोच रहे हो कि मेरा भी नहीं हुआ इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बैठा ही नहीं था। मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होगा कि इस बच्चे को लेगा, वो किसी को भी ले सकता है। मतलब इफ यू नो हाउ टू सेल योर सेल्फ, इफ यू नो हाउ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन द बेस्ट वे यू कैन, देन तुम्हारा हो जाएगा। वाह, पहले पहले क्या होता था कि 9 CG वाले को लेता था, तो सबको लग रहा था कि शायद ये कंपनी सिर्फ 9 पॉइंटर वाले को ले रहा है, लेकिन फिर देखा कि 8, इस साल तो 7.5 वाले को भी लिया है। तो ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि वो एचआर एक्चुअली क्या बोलना चाहता है। वह तो तुम्हारा अगर लक साथ दे रहा है, तुम्हारा तुम्हारा अगर प्रोजेक्ट ठीक से किए हो,
सीजी मैटर नहीं करता है, कभी कभी मैटर करेगा, कभी कभी मैटर नहीं करेगा। वह तो ये सब डिबेट का सवाल है कि सीजी मैटर करता है कि नहीं करता है। ऑब्वियसली करता है, लेकिन कुछ ऐसा चीज होगा कि सीजी मैटर नहीं भी करेगा। तुम बोलोगे कि उसका इतना कम सीजी था, उसका कैसे हो गया, लेकिन वो तुम बोल रहे हो, एचआर नहीं बोल रहा है। एचआर कुछ अलग देख के लिया है उसको, समझ रहे हो ना। तो इसलिए तुम ब्लाइंडली नहीं बोल सकते हो कि मेरा 9 सीजी है मतलब मेरा हो ही जाएगा एग्जाम। ओके, तो तुम एक ही कंपनी को टारगेट करके पूरे 4 साल वेस्ट नहीं कर सकते अपना। तुम एग्जाम में भी बैठो, उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो, उसके साथ केमिकल इंजीनियरिंग में भी फोकस रहो, समझे। मैं बोल रहा हूँ कि एनपीटीएल में जाओ, क्लासेस करो, अच्छे से नोट्स बनाओ। वाह। और एनपीटीएल का जो कोर्स होता है ना, वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कोर्स होता है, मतलब समझे ना, मतलब उससे कम ही सिलेबस होते हैं सब कॉलेज का। हमारा जो एनआईटी का है उसका लेस देन 75% या 50% तुम बोल सकते हो। तो एनपीटीएल जाओ, एनपीटीएल से देखो, रेफरेंस बुक होगा बहुत सारा जो प्रोफेसर फर्स्ट दिन में बता रहे होंगे, वो सब देखो। एनपीटीएल में बताते हैं कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या क्वेश्चन करना है, वो सब देखो। फिर इसके अलावा अगर तुम देख रहे हो कि यूट्यूब में कुछ अच्छा टॉपिक है, यूट्यूब में ऐसा तो नहीं होता है कि पूरा पूरा सब्जेक्ट्स हीट ट्रांसफर पूरा पढ़ाई गया हो, ऐसा तो नहीं होता है, कम ही होता है। लेकिन समझ जाओ कि अगर समझ लो कि हीट ट्रांसफर का तुम्हें सिर्फ हीट एक्सचेंजर डिजाइन पढ़ना है, तो जस्ट टाइप हीट ट्रांसफर डिजाइन, आ जाएंगे कुछ अच्छे लेक्चर्स, आ जाएंगे कुछ प्राइवेट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छे अच्छे लेक्चर्स होते हैं, अच्छे अच्छे आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट 40 मिनट का लेक्चर्स होते हैं, वो सब देखो और नोट्स बनाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है गेट के लिए नोट्स। ओके, नोट्स अगर तुम्हारे अच्छे से प्रिपेयर होंगे, तुम्हें सिर्फ 6 महीने से 8 महीने लगेंगे अच्छे से प्रिपेयर होके गेट अच्छा रैंक लाने के लिए। ओके, नोट्स अच्छे से ही। मैं अभी बोल रहा था कि पढ़ाई पसंद नहीं था कॉलेज का, वाह, लेकिन मैं अपने सेंटेंस को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ, समझे कैसे। आशीष, पहचानते होंगे, योर सीनियर इन एआईसीएच, राइट, आशीष। उसको मुझे जो टीचर पढ़ा रहे थे वो फर्स्ट बेंच में बैठता था, उससे जो पढ़ा रहे थे भी मुझे ही वही पढ़ा रहे थे, वो फर्स्ट बेंच में बैठता था, मैं लास्ट बेंच में बैठता था। लेकिन डिफरेंस क्या था, उसका ये कैपेबिलिटी है कि टीचर प्रोफेसर एक एक वर्ड जितने भी खराब वे में बोले, जितने भी बुरे से बुरे तरीके से पढ़ाए, वो उसको सुन सकता था, उसको ग्रास्प कर सकता था, वो उसको समझ सकता था। उसका ये टैलेंट है, समझे। वो उसका नोट्स देखना मस्त अच्छा है। बिलीव नहीं करोगे, मैं इतना कुछ किया सेकेंड ईयर से, वो सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ के लास्ट 6 महीने में या लास्ट 3-4 महीने में ही सिक्योर्ड रैंक ऑफ 140। ओके, सो समझ सकते हो कि नोट्स कितना इंपॉर्टेंट है। सेम टीचर मुझे पढ़ाते थे, उसको पढ़ाते थे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अलग तरह का बच्चा हूँ, जो मतलब अगर इंटरेस्ट नहीं आएगा तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, समझे। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं कि जेई 11-12 में तो बहुत अच्छे पढ़ते थे, लेकिन अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, रीजन यही है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि पढ़ाई का मन करे या ना करे, वो फर्स्ट बेंच में बैठ के, सेकंड बेंच में बैठ के, साइड में बैठ के, कहीं से भी बैठ के वो अरेंज कर सकते हैं नोट्स, वो समझ सकते हैं। टीचर जितने भी खराब तरीके से पढ़ाए वो समझ सकते हैं उसको। तो ये एक स्पेशल तरह का टैलेंट होता है, वो सबके पास नहीं होता है। तो अगर उस वो भी अगर हो, तो फिर भी नोट्स बनाना नेसेसरी है ही है। अगर तुम टाइम मिले तो आशीष से बात करना, वो कैसे प्रिपेयर किया है, तो वो ऐसे ही प्रिपेयर किया है, वो सोलली प्रिपेयर किया है क्लास नोट्स, समझे। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि नोट्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आए, कौन पढ़ाए, कुछ मैटर नहीं करता। तुम्हें पसंद है, वो प्रोफेसर पढ़ रहा है, तुम्हें पसंद है, अच्छे से नोट्स बनाओ। नहीं पसंद है, बाहर से नोट्स बनाओ, दोस्तों से लाओ, कहीं से भी लाओ, नोट्स अरेंज करो, समझो उसे, नोट्स खुद बनाओ। वाह, नोट्स रेडी रखो कि सिलेबस देखा, गेट का सिलेबस देखा, ये टॉपिक है, ये टॉपिक का कवर हो गया, नोट्स बना लिया है, समझ गया हूँ, बस खत्म, टॉपिक खत्म। तो फिर क्या है कि लास्ट 3-4 महीना रहेगा, तब क्या करना है। जब लास्ट 3-4 महीना रहा, मतलब समझ लो कि नवंबर या दिसंबर, उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाता है, समझे। तो तुम टेस्ट सीरीज दोगे, एनरोल करो, अन अकेडमी है, एक ई करके है, गेट एकेडमी है, ये सब जो है, इसका सब टेस्ट दो, टेस्ट दे के एग्जामिन करो वो रिजल्ट कि कहाँ रॉन्ग हो रहा है। बहुत बहुत सिली मिस्टेक्स होते हैं एक्चुअली, गेट का जो क्वेश्चन लेवल होता है ना, वो जेई मेन से कम होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि इतना ह्यूज सिलेबस होता है इसका, 3 साल का पढ़ाई होता है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का कुछ 2-3 सब्जेक्ट, और फर्स्ट ईयर का मैथ। ओके, तो ये 3 साल का पढ़ाई होता है, तुम्हें सारा को रिवाइज करना है, पढ़ना है अच्छे से। और क्या होता है कि इनका जो होता है ना,
तो आता है कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ओके, जिसमें तुम्हें इंटीजर या डेसिमल या कुछ भी तुम्हें टाइप करना पड़ता है आंसर। तो इस साल आउट ऑफ 65 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन रहते थे, 32 क्वेश्चन। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मच प्रिसाइज वी हैव टू, ओके, कितना प्रिसाइज तुम्हें होना पड़ेगा, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इतना बार टेस्ट देना पड़ेगा कि तुम्हें पता चल सके कि रॉन्ग कहाँ हो रहा है। बहुत सिली मिस्टेक्स होते हैं। मेरा स्टार्टिंग में मुझे याद है, मेरा सिली मिस्टेक होता था कि फ्रैक्शन में आंसर मांगा होगा, मैं परसेंटेज कर दिया उसको, समझे। परसेंटेज में मांगा होगा, फ्रैक्शन कर दिया होगा, समझे। केल्विन में मांगा होगा, कि डिग्री सेल्सियस में मांगा होगा, मैं केल्विन में निकाल दिया आंसर। ओके, तो ये सब बहुत सिली मिस्टेक्स होते हैं। तुम जब टेस्ट दोगे ना तो पता चलेगा तुम्हें कि क्या सिली मिस्टेक होते हैं। तो वो सब रिजल्ट को एग्जामिन करो, फिर से रिवाइज, नोट्स रिवाइज करो। तो ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये तुम्हारा 3-4 महीना चलना पड़ेगा। गेट का सॉरी, गेट का जो एग्जाम होता है वो होता है फरवरी फर्स्ट वीक में। तो तुम्हें नवंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना तुम्हारे फुल मिलेगा, और फरवरी में फर्स्ट वीक, समझे। तो ये 3 महीने में ये तुम्हारा साइकिल चलता रहना चाहिए, समझे। और गेट का बोल रहा हूँ नेक्स्ट, वेट, सही करना। यू विल नॉट बिलीव, उसमें से एक बच्चा क्वालिफाई भी नहीं किया गेट। 1 साल पढ़ा था, वो अच्छा बच्चा है, अच्छा पढ़ता है, 1 साल पढ़ा था, लेकिन क्वालिफाई भी नहीं किया। रीजन ये है कि तुम्हारा जो मैराथन का या तुम्हारा जो लैप रेस होता है, रेस में सबसे तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है लास्ट लैप, ओके। तुम लास्ट लैप, तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि थक गए अभी बैठ जाते हैं, वो कुछ फायदा नहीं। तुम जितना भी स्पीड दौड़े हो, अगर समझ लो कि 400 मीटर का रेस है, 2 राउंड दौड़ना है, 1 राउंड दौड़ गए, फिर बोले कि नहीं यार मन नहीं कर रहा, छोड़ो। तो तुम जितना भी स्पीड भागे होगे, जितना भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े होगे, वो 200 मीटर में कोई सेंस नहीं बनेगा, कोई सेंस नहीं बनेगा। तो इसलिए बोलता हूँ कि जो भी तुम्हें करना है अच्छे से करो। अगर तुम्हें एमबीए के लिए जाना है, अच्छे से जाओ, अच्छे से पढ़ो, समझे। गेट के लिए जाना है, अच्छे से गेट दो। वाह, सभी में मतलब गेट में भी कुछ अच्छे चीजें होंगे, कुछ बुरे चीजें होंगे। सब सुने होंगे एमटेक कोई करता नहीं है इंडिया में, एब्सोल्युटली राइट है, कोई नहीं करता है। रीजन ये है कि सारे में करना भी नहीं है। तुम्हें अगर करना है, आईएससी में करना है, आईआईटी बॉम्बे में करना है, कानपुर में करना है, दिल्ली में करना है, मद्रास में करना है, इसके अलावा कहीं करना ही नहीं है। तुम क्यों सोचो कि मुझे करना है कुछ आईआईटी गुवाहाटी में करना है, आईआईटी रुड़की में करना है, ये सब नहीं करना है। कुछ कुछ यूजलेस है, मीनिंगलेस है, समझे। करना है तो अच्छी जगह पे करो। अगर जॉब करना ही है तो अच्छी जगह पे करो। अगर तुम्हें बोलना है कि तुम्हें कोर सेक्टर में ही जॉब चाहिए, तो 5 लाख का जॉब क्यों लेना है, 15 लाख का क्यों नहीं लेना है, सोचो एक बार। तो पढ़ाई, अगर अच्छा चीज चाहिए, तुम जब भी खुश होते होगे ना कि 4 लाख का जॉब लग गया, 5 लाख का जॉब हो गया, तो कभी सोचना कि 11-12 में तुम अपने माइंड में कौन सा अमाउंट लेकर पढ़ रहे थे। सभी ये मतलब कोई बोल नहीं सकता कि हाँ वो खुश हो गया हुआ। ऐसा होता है कि सब एडजस्ट कर लेते हैं अपने साथ कि हाँ चलो ठीक है, हमने तो कुछ 4 साल 5 साल 4 साल पढ़ा नहीं है, इतना भी कोई दे दिया उस मतलब। एक्चुअली यही रीजन है ना, 3 साल 4 साल कोई पढ़ा मतलब ठीक से ढंग से पढ़ा नहीं होता है, इसीलिए अगर कोई 3 लाख 4 लाख 5 लाख भी दे देता है ना तो खुश हो जाते हैं वो। चलो, डालमिया आया था, वह कितना दे रहा था पता है, 3.5। वाह, बहुत सारे ऐसे जॉब आ रहे थे तो आ रहे थे 3.5, 4.5। मतलब कितना बुरा लगता था देख के कि इसमें भी इतना कंपटीशन कि किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है। सब मतलब ठीक नहीं है मुझे लग रहा है। तुम अगर इतने बड़े कॉलेज पे आए हो तो ये मतलब प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छे से यूज करना है तुम्हें, ओके। ऐसा नहीं है कि तुम अगर सोच रहे हो कि एनआईटी का टैग तुम्हारे सर पर हमेशा रहेगा, तो ऐसा नहीं है। एक बार तुम कॉलेज से निकल गए ना, और तुम समझ रहे हो कि इन्फोसिस में काम किए, कैपजेमिन में काम किए, तो तुम्हारे साइड जो लड़का काम कर रहा होगा ना, वो किट से गया होगा। डिलोट पे गए होगे ना, तुम्हारे साइड में बंदे होंगे जो मतलब तुम्हारे से कई 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 गुने नीचे वाले होंगे, जो तुम्हारे साथ बैठ के काम कर रहे होंगे, समझे। तो अगर कुछ भी करना है, एवरेज बन के मत रहो, समझे। हमेशा ऊपर रहो, कुछ भी करना हो। अगर तुम कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी मतलब कोई अन अकेडमी में, मेरा एक बैचमेट है, वो फर्स्ट ईयर में अन अकेडमी में पढ़ाता था बायोलॉजी। हुआ उसका अभी मंथली इनकम शायद है
2 लाख या 3 लाख है शायद, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, इतना अमाउंट है, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर से उसके पीछे मेहनत कर रहा है, समझे। तो तुम अगर सोच रहे हो कि तुम्हें ये केमिकल इंजीनियरिंग सेक्टर पसंद नहीं है, कुछ और करना है, एमबीए में जाना है कि और कुछ करना है, तो ढंग से करो, ऐसा कुछ करो कि एवरेज बन के मत रहो। मैं तो बोलूंगा कि कोई भी है ना, कोई इन्फोसिस ये सब कोई मतलब टारगेट मत रखो, समझे। ये सब मतलब पूरा है कि पूरा एंड में अगर कुछ ना मिले, इन वर्स्ट केस, वाह, इन वर्स्ट केस ये सब में अगर तुम जाना चाहोगे जाओ, लेकिन टारगेट करो, एक्जन मोबिल टारगेट करो, करना है करो। उसके नीचे तुम अच्छे से ढंग से पढ़ के रखो कि इन केस कोई अच्छा कंपनी आए तो तुम्हें ले जाए, समझे। 10 लाख 12 लाख का आए तो ले जाए। ऐसा नहीं है कि 4 लाख 5 लाख इसमें तुम खुश हो जाओगा। समझ लो कि L&T आया था, वो दे रहा है 5 लाख, ओके। पता है 5 लाख कहाँ देगा वो? मुंबई में देगा। मुंबई में 5 लाख में समझ रहे हो क्या हालत है? मुंबई में 5 लाख क्या होता है? 5 लाख क्या होता है? तुम्हारा वही दोस्त, तुम्हारा जो साथ में आया होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जो इलेक्ट्रॉनिक्स या सीएस का बंदा होगा, वो कमाएगा शायद 12 से 15 लाख 14 लाख। उनका तो इतना बड़ा बड़ा अमाउंट होते हैं, बोलो मत। वाह, 22 24 क्या क्या होते हैं। तो देखो, ये तो बुरा लगेगा ना कि एक साथ आए थे, वो कहाँ है, तुम कहाँ। हाँ, ये एक्चुअली इंडियन एजुकेशन सिस्टम में है, एग्जिस्ट करता है वो। तो ये ऐसा नहीं है कि तुम इसको इग्नोर कर दो। अच्छे से पढ़ना है, गेट में अच्छा रैंक लाना है। अगर पढ़ाई करने का इच्छा हो, आईआईटी बॉम्बे आईआईसी जाना है। अगर पढ़ाई करने का इच्छा ना हो, आईओसीएल ओएनजीसी गेल इसमें जाना है। 18-20 लाख रुपए कमाना है, समझे। अगर ये सब गवर्नमेंट जॉब से बोर हो जाओ तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के अपना एंटरप्रेन्योरशिप कंपनी खोलना है, स्मॉल कंपनी खोलना है। ये सब टारगेट रखो। अब टारगेट हमेशा बड़ा रखना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट कैसे हुआ था। फर्स्ट ईयर में हम जब थे, जब खत्म हुआ तो भैया थे, नाम नहीं पता मुझे, शशांक या कुछ था कुछ। उनका रैंक आया था ऑल इंडिया केमिकल में, उनका रैंक आया था 69 या 70 कुछ आया था। तो मैं उस टाइम सोचा कि अरे वाह, इतना इतना कम रैंक, मतलब मस्त होंगे वो, क्या पढ़ रहे होंगे वो भाई, वाह, तो बहुत अच्छे होंगे वो। फिर जब मतलब मुझे लगा कि इतना रैंक तो मेरा आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। 69 ऑल इंडिया रैंक, इट्स अ बिग थिंग, राइट। 60 बहुत कम है, आएगा नहीं। फिर जो मैं सोचा था वो प्रूफ भी होने लगा, क्योंकि उसके लगातार 2 साल कोई भी नहीं रैंक लाया। मतलब हमारे पिछले साल तो शायद हाईएस्ट मार्क ही कोई लाया था, 50 मार्क। 50 मार्क मीन्स यू कैन थिंक ऑफ लाइक ही हैव सिक्योर्ड 1000 रैंक, ओके। 50 मार्क्स मतलब 1000 या 1100 रैंक आया होगा। तो मैं सोचा, हाँ, मैं जो सोचा था वही है। डिफिकल्ट तो है, क्योंकि एक साल कोई लाया, फिर 2 साल कोई नहीं लाया। फिर मैं जब खुद प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, मुझे रियलाइज हुआ कोई इसलिए नहीं लाया क्योंकि कोई प्रिपेयर ही नहीं हुआ। 2 साल कोई प्रिपेयर ही नहीं हुआ। हमारे साल देख लो कितने लाए। मेरा 14, बिजन का 81, आशीष का 142 आई गेस, और इसी का पड़ेगा 147 149 ऐसे समथिंग अराउंड। वाह, तो प्रिपेयर करोगे रैंक लाओगे। वाह, ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि इतना भी कोई टफ नहीं है। वाह, कोई, क्योंकि कंपटीशन ही इतना कम है, 17,000 बच्चे हैं, समझे। चलो, ये हो गया मेरा। अभी किसको अगर कुछ पूछना हो तो पूछो। ये मेरा हो गया, इतना ही बोलना था तुम्हें, समझे। हाँ भाई, हार्ड मतलब क्या क्या बोले, बहुत हार्ड। कोई बोर नहीं हुआ तो? नहीं भैया नहीं, लाइक सब मतलब ऐसे आंखें फाड़ के देख रहे हैं, सबका टेंशन हो गया। लाइक हम अरे सेकेंड कुछ, ईयर जो जो कॉलेज नहीं गए ना भैया, हम तो सेकेंड ईयर अभी तक, लाइक फर्स्ट ईयर तो कॉलेज गए नहीं, हम सेकेंड ईयर एक साल से कॉलेज में है नहीं। तो हमारा और भी बुरा हाल है नहीं पढ़ने का, तो अभी अरे देखो सोचना देखो, पड़ेगा। कॉलेज में रहने से एक तो जो अच्छा चीज होता है ना, वो है कि तुम्हारा जो एनवायरनमेंट हुआ। घर में रहकर मैं एक साल कुछ पढ़ा नहीं हुआ फोर्थ ईयर में, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। लास्ट ईयर मेरा इसलिए मैं बच गया क्योंकि मेरा पहले से नोट्स रेडी था। तो मैं क्या करता था कि नोट्स रिवाइज करता था, एग्जाम देता था। लेकिन कॉलेज में क्या होता था कि लाइब्रेरी में जाओ, आराम से पढ़ो, रूम में रहो, कोई मतलब टोका टोकी नहीं कुछ। बोर हो रहे हो, कॉलेज घूम लो थोड़ा सा। घर पे ये सब नहीं मिलता है, तो ये एक तो डिमेरिट है, मान रहा हूँ। लेकिन जो मैं बाकी सब बोला वो सब सही है, वो सब सबके लिए एप्लीकेबल है। तुम्हें ये मतलब पहले से ही मान लेना चाहिए कि तुम सर्किटल ब्रांच नहीं हो। वाह, ये मान लो, तुम खुद मान लो कि तुम सर्किटल ब्रांच हो ही नहीं। क्योंकि तुम अगर उन्हें देखकर अगर तुम खुद के बारे में अगर परसेप्शन बनाने लगोगे ना, तो तुम डिप्रेस हो जाओगे, सच में डिप्रेस हो जाओगे। मेरा एक दोस्त है, उसका
सारे दोस्त हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का है, कोई सीएस का है, कोई इलेक्ट्रिकल का है, वो खुद केमिकल का है। तो सारा का इंटर्नशिप लग गया, सारा का जॉब लग गया 15+ लाख में, इसका लगा 5 लाख में, समझे? तो समझ लो क्या हालत होता होगा। फिर भी वो खुश था कि हाँ लग गया, लास्ट में जॉब लग गया। लेकिन ऐसा होने वाला सिचुएशन सबके साथ होने वाला। चलो कोई पूछना चाहता है, कोई चार्ट्स चार्ट्स में क्यों लिख रहे हो, पूछो ना अच्छे से। Okay, so like जिसको भी क्वेश्चन पूछना है, they can raise hands and then we can unmute them. हेलो भैया, अभिषेक है। हाँ हाँ ask। भैया थैंक यू फॉर द सेशन, बहुत अच्छा था, बहुत हम लोगों को काफी इंस्पायर हुए हम लोग। सो मेरा क्वेश्चन था कि लाइक वी आर फॉर थर्ड इयर्स हु आर मूविंग टुवर्ड्स एंड ऑफ थर्ड ईयर। सपोज अभी हम लोग फाइनल ईयर्स में होंगे, वी विल सिट फॉर प्लेसमेंट्स आल्सो, और फिर बाकी चीजें भी होती रहेंगी जैसे प्रोजेक्ट हो गया एंड ऑल। सो उसके साथ हाउ डू वी मैनेज द गेट, मतलब लास्ट जैसे जो होता है ना कि 3 साल तो पढ़ लिए, बट क्या ऐसा ज्वाइन करें जिससे हम लोग का गेट प्रिपरेशन परफेक्ट रहेगा, मतलब जैसे गेट हाँ एकेडमी टाइप्स, या क्या ज्वाइन करना हाँ चाहिए? समझ। देखो तुम्हारा जो प्लेसमेंट के लिए होता है ना, तो उसका अगर तुम गेट के लिए पढ़ रहे हो ना, तो ओटी चुटकी में क्लियर हो जाएगा। मैं एक भी ओटी के लिए कुछ पढ़ा नहीं हुआ। मैं 3 कंपनी में बैठा था, एल&टी में बैठा था, लिंडे में बैठा था, और ल्यूपिन में बैठा था। वह मेरा हुआ नहीं उसमें किसी में भी। लेकिन जो मैं ओटी का बात बोल रहा हूँ, ओटी में तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। जो गेट के लिए पढ़ रहा होगा ना उसके ओटी के लिए कोई टेंशन ही नहीं लेना है। क्योंकि मैक्सिमम जो ओटी का क्वेश्चन होता है ना, जो indiabix.com है, या जो मतलब क्या बोलते हैं ओटी रिलेटेड टाइप के जो वेबसाइट्स हैं जिसके लिए मतलब तुम प्रिपेयर करते हो, तुम्हारा जो पीसी बनेगा वो भी तुम्हें यही सजेस्ट करेगा कि इंडिया बिक्स में आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो या शॉर्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो जो गेट के लिए पढ़ रहा होगा उसका ओटी क्लियर हो जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। बाकी रहा कि क्लास के साथ कैसे मैनेज करना है। क्लास तुम्हारा अगर ऑनलाइन रहा तो ऑनलाइन तो मैं श्योर हूँ कि कोई इतना है कि नहीं कि ध्यान से कुछ सुन रहा होगा, अच्छे से कोई नोट्स बन रहा होगा उसका, तो वो तो सवाल नहीं बनता। वो अगर जो बना भी रहा होगा उसका हार्डली 3 घंटा जा रहा होगा क्लास। ऑनलाइन क्लास कितना का होता है, 3 घंटा 4 घंटा का होता है। तो तुम दिन में हो गए, रात में गेट के लिए पढ़ाई करने बैठो। और क्या करना है अभी, देखो अभी तुम्हें क्या करना है कि अगर तुम थर्ड ईयर के एंड में हो, अभी ये पॉसिबल नहीं है कि तुम गेट के लिए एनपीटीएल से पढ़ो हुआ। क्योंकि एनपीटीएल का जो एक एक वीडियो होता है वो 40-50 मिनट्स का होता है। और एक एक सब्जेक्ट्स का अराउंड 23 या 20-40 आवर्स का होता है, 30 आवर्स का होता है। तो ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। तुम क्या करना है कि 3 साल तुम पढ़ लियो। 3 साल में तुम्हारे पास नोट्स है, क्लास का नोट्स है कि किसके टॉपर्स के नोट्स हैं, जिसके भी नोट्स हैं, क्लास टॉपर्स के नोट्स के जिसके भी नोट्स हैं, वो लाओ, वो पढ़ो। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है। गेट सिलेबस के साथ तुम मैच करो हुआ कि ये टॉपिक हो गया है, ठीक है, कौन सा टॉपिक नहीं हुआ है। जो टॉपिक नहीं हुआ है सिर्फ वही टॉपिक का एनपीटीएल वीडियोस देखो, गेट एकेडमी का देखो, या कहीं से भी देखो, हुआ मैटर नहीं करता। मैटर है कि तुम्हें नोट्स रेडी करना है लास्ट के 3 महीने से पहले। अगर तुम अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो यू मेक श्योर दैट बिफोर द एंड ऑफ नवंबर यू मस्ट हैव प्रॉपर नोट्स, ओके, जिससे कि मतलब तुम डायरेक्टली वही पढ़ के सिर्फ तुम एग्जाम दोगे, टेस्ट सीरीज दोगे। ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज के टाइम पे तुम यहाँ वहां घूम रहे हो कि एक्चुअली पढ़ना क्या है। ये नहीं होना चाहिए। तुम अगर पहले प्रिपेयर हो गए हो, जब टेस्ट दे रहे हो ना, यू शुड हैव क्रिस्टल क्लियर आइडिया कि ये एक टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, इतने इतना ही दे सकता है वो, इससे ज्यादा वो देगा नहीं। ये आइडिया करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम जब ये जो कंपेयर कर रहे होगे ना खुद के नोट्स के साथ और सिलेबस के साथ, वही पैरेलली में तुम्हें क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखना है। ओके, एक तो वेबसाइट है unitoperation.com करके, unitoperation.com, ओके। वो क्या करता है कि वो वेबसाइट में ऐसा है कि पेड वेबसाइट है, 1 साल का 700-800 कुछ है। तुम्हें वो क्या करना है कि लेना है, सब्सक्राइब करना है। उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन है, सब क्वेश्चन का, ओके। तो तुम्हें क्या करना है कि वो समझ लो कि हीट ट्रांसफर तुम पढ़े, हीट ट्रांसफर पढ़े, अभी जितना हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है सारे साल का तुम देखिए कि हाँ 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 ऐसा 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 क्वेश्चन आता है। वाह, इससे ना तो ऊपर आ सकता है, इससे ना तो नीचे आ सकता है। वाह, नीचे कुछ भी आ सकता है, मतलब इससे ऊपर नहीं आएगा, समझे? तो तुम्हें बाउंड्री मिल गया तुम्हें, तो उसका तुम नोट्स चेक कर लिए कि हाँ 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 ये सब इंक्लूड है। अगर इंक्लूड नहीं है तो यूट्यूब वीडियो देखो, बुक पढ़ो, जो भी करना है करो, वो सब इंक्लूड करो नोट्स में, समझे? ऐसे कर करके तुम्हें अपना पहले 6-7 महीने में तुम्हें अपना नोट्स बनाना है, नोट्स कंप्लीट करना है पहले, सबसे पहले नोट्स। ऐसे नोट्स बन गया, फिर क्या करना है कि रिवीजन करना है। एक सब्जेक्ट पढ़ लिए, पार्ट टेस्ट दिए, फिर दूसरे सब्जेक्ट किए, पार्ट टेस्ट दिए, सारा टेस्ट सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, फिर
ऐसे फिर रिवीजन स्टार्ट, दिसंबर से फुल टेस्ट देना स्टार्ट किए, दिसंबर ही छोड़ो, जनवरी से फुल टेस्ट देना स्टार्ट किए, ऐसे ऐसे करके करना है। जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी गेट के लिए प्रिपेयर कर रहेगा अच्छे से, उसके लिए ऑन कैंपस में प्लेसमेंट में बैठने का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हुआ, अगर कोई तुम्हें सिलेक्ट नहीं कर रहा है, समझ लो कि मतलब तुम्हारा लक खराब है, इसलिए नहीं कि तुम्हारा नॉलेज कम है। हुआ, क्योंकि ओटी तुम्हारा चुटकी में क्लियर होगा ही होगा, गारंटी होगा। ओटी में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस। तुम्हारा पहला तो बात है, ओटी में सिर्फ 50% ही या 40% ही आता है, 30% आता है तुम्हारा केमिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन। बाकी एप्टीट्यूड्स होते हैं, इंग्लिश एप्टीट्यूड होते हैं, इंग्लिश क्या बोलते हैं, वोकेबलरी होते हैं, और एप्टीट्यूड होते हैं, समझे। तो ओटी क्लियर हो जाएगा, प्लेसमेंट का टेंशन मत लो। बाकी जो रहा ये सब मैं तुम्हें बोल दिया हूँ, समझे। प्लेसमेंट इंटरव्यू में भी कोर रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं क्या, एक्चुअली लाइक किस लेवल पे पढ़ना? इंटरव्यू में एक्चुअली तुम्हारा जो डिपेंड करता है, वो एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे क्या करते हैं कि सबसे इजी तरीका है कि तुम इंटरव्यूअर को अपना प्रोजेक्ट की तरफ ले आओ, समझे। मतलब तुम कुछ होते हैं जो डायरेक्टली पूछते हैं कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, ओके। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो पता चल जाएगा कि वो सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में पूछेगा। अगर ये नहीं पूछ के वो बोले कि तुम्हारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या है, इंटर्नशिप क्या है, मेरा जो डीमेरिट रह गया वो है कि मेरा इंटर्नशिप नहीं है, समझे ना। क्योंकि मेरा थर्ड ईयर एंड में मैं करने वाला था, कोरोना आ गया तो कर नहीं पाया। तो मेरा सीवी में इंटर्नशिप ब्लैंक था, समझे ना, सिर्फ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, इंटर्नशिप नहीं था। तो मुझे लग रहा था कि शायद यही था कि वो जब इंटर्नशिप पूछ रहा था तो मैं बोल रहा था कि नहीं क्या कहीं कहीं, तो एक वो नेगेटिव मार्क आ जा रहा था। लेकिन तुम्हारा तो उस टाइम पे हो गया होगा। तो तुम अगर दो टाइप के होंगे, अगर तुम्हें पूछे कि क्या प्रोजेक्ट किए हो तो जान लेना कि वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही पूछने वाला है। और अगर तुम्हें पूछा कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो समझ जाना कि सब्जेक्ट के तरीके में पूछेगा। तो सब्जेक्ट्स में भी वो ऐसे नॉर्मली पूछते हैं। जो आरती आया था वो ऐसे बेसिक से पूछ रहा था कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या है, डेफिनेशंस, ओके। मतलब कुछ नहीं है, तुम कर दोगे, इजीली कर दोगे। मतलब जो भी थोड़ा सा भी सीरियस होगा कोर के तरफ, कर देगा, इजीली कर देगा। और अगर समझ लो कि एग्जाम में किसी को पूछा सब्जेक्ट के रिलेटेड, किसी को नहीं पूछा, वही बोला ना, लक चाहिए इसके लिए, समझे ना। मतलब 50% हार्डवर्क, 50% लक, ओके। और गेट के लिए थोड़ा सा हार्डवर्क लेवल बढ़ाना पड़ेगा, लक थोड़ा सा कम हो जाएगा, समझे। क्योंकि ऑन कैंपस में है कि तुम्हारा फ्यूचर और कोई डिसाइड कर रहा है, लेकिन गेट एग्जाम सेंटर में तुम्हारा खुद खुद अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो, समझे ना। एचआर में क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि तुम फंबल कर जाते हो। जैसे मेरा इंग्लिश इतना भी अच्छा नहीं है, तो मैं अगर समझ लो कि फंबल कर गया, समझे। और कोई बंदा है जिसका टेक्निकल नॉलेज अच्छा नहीं है, लेकिन वो उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, समझे। वो इंग्लिश में बहुत अच्छे से बोल सकता है, वो कॉन्फिडेंस कर सकता है, तो ऑब्वियसली वो उसको ही लेगा ना, मुझे क्यों लेगा वो। ऐसा तो नहीं है कि मुझे वहां जाके, देखो लेट्स बी क्लियर, ओके। तुम्हें जो भी बीटेक के लिए जो भी जॉब मिलेगा ना, वो ऐसा नहीं होगा कि तुम जाके तोड़ फोड़ दोगे वहां, कुछ आर&डी कर दोगे, ये रिसर्च कर दोगे, वो कुछ नहीं करने वाला है। तुम्हें सिर्फ वो मैनेजरियल वर्क देगा, समझे। और जो मतलब बेसिक्स वर्क होते हैं, मतलब कुछ भी टेक्निकल इतना नहीं होगा कि तुम्हें कुछ मतलब रिसर्च करना पड़ेगा, कुछ कुछ बना दोगे, कुछ इन्वेंट कर दोगे। जो बोलते हैं ना इंजीनियरिंग में पैशन, ये नहीं है। ये आरती में जाके पैशन नहीं होगा, समझे ना। या कि और कुछ जाके यहाँ वहाँ 5 लाख 4 लाख 6 लाख, ये सब बकवास है, समझे। अगर तुम्हें सच में लग रहा है कुछ करना है, आर&डी में जाना है, न्यूक्लियर रिसर्च, एटॉमिक रिसर्च, कुछ भी ऐसे जो हाई लेवल जो होता है ना थिंकिंग, कि हाँ ये सब फिल्म में सुने थे मस्त लगा था, वो अगर वो सब करना है ना, तो समझ जाओ। 17,000 केमिकल इंजीनियरिंग एग्जाम देते हैं, उनमें से काट काट के बार कितना देता है, 20, समझ रहे हो। तो यू हैव टू बी द बेस्ट एमंग द बेस्ट, ओके। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज इतना इजीली मिल जाएगा। तो इसलिए तुम्हारा मैं बोल रहा हूँ, जो हम लोग, लेट्स बी फ्रैंक, ओके, हम लोग कोई भी वाह, जो 11th 12th में जितना मेहनत करते हैं ना, उसका 1/10 भी नहीं करते हैं अभी। मैं अपना भी इंक्लूड कर रहा हूँ, 1/10 भी इंक्लूड नहीं करते हैं। तो उतना अगर जेई मेन के टाइम अगर जितना किए होंगे, अगर उतना अगर 2 साल अगर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी कर दिया ना, भाई फोड़ दोगे, कुछ भी कर दोगे, कुछ भी निकालेगा, यूपीएससी भी आ जाएगा। क्योंकि मेन बात है एनआईटी में आए हो तो कि तुम्हारा जो आईक्यू लेवल है वो तुम सोच सकते हो कि विद इन 20,000 है। इतना तो तुम मानोगे कि विद इन 20,000 है ही। उसमें से समझ लो कि तुम्हारा ब्रांचेस अलग अलग हो गए। अभी केमिकल इंजीनियर का एनआईटी में कितना सोच रहे हो, कितने बच्चे होंगे, 200 300 मैक्स। सारे एनआईटी में तो है नहीं। बाकी आईआईटी के केमिकल इंजीनियर तो पार्टिसिपेट करते भी नहीं है, वाह। तो तुम्हें सिर्फ ये 200 300 बच्चों के साथ मिलके मतलब कम्पीट करना है, समझे। तो कंपटीशन इतना में ही रहेगा, इतना ज्यादा नहीं है कि कुछ मतलब
बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ऐसा ऐसा हो सकता है कि क्या होता है कि हर साल में जितने सब पीएसयू बोला, बार खाली सिर्फ हर साल 20-20 को लेता है, बाकी जो होते हैं ना, मतलब कभी कभी निकालते हैं, कभी नहीं निकालते हैं वैकेंसीज। तो उसके लिए कोई इतना वरी होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो गेट स्कोर है ना वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। मेरा मेरा इस साल दिया मैं 2021, तो जो जॉब 2022 में निकलेगा तो मैं उसमें बैठ पाऊंगा। वो ऐसे लिखा होगा कि गेट स्कोर ऑफ 2021 इज ऑल्सो एलिजिबल। समझे? तो इतना कोई टेंशन नहीं लेना है कि भैया ने बोला था कि इतना इतना जॉब निकलता है, नहीं निकला, नहीं निकलेगा। अभी तो नहीं निकलेगा क्योंकि कोरोना है, लेकिन तुम्हारे टाइम पे बहुत अच्छा हो गया होगा। समझे ना? और मेन बात गेट नहीं है, मेन बात है इंटरेस्ट जनरेट करने का। इंटरेस्ट अगर आ गया ना, तो गेट का जो सिलेबस है वही एचपीसीएल का है, वही बार का भी रहेगा, वही सारे का रहेगा। समझे ना? तो अगर तुम्हें गेट गेट अगर एग्जाम खराब भी गया ना, तो उसके बाद तुम्हारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। समझे? चलो, और कोई कुछ बोले पूछेगा? आईआईटी के लिए रैंक कितना होना चाहिए? आईआईटी आईआईसी के लिए तुम्हें चाहिए विद इन 40-50 रैंक चाहिए। आईआईसी बेंगलोर के लिए। आईआईटी बॉम्बे के लिए तुम्हें विद इन 150-200 रैंक चाहिए, 250 तक भी पॉसिबल। और आईआईटी फिर रह गया, कानपुर रह गया, दिल्ली रह गया, मद्रास रह गया, ये सब के लिए 300-400 उसके बीच में रहने से चलेगा। मतलब तुम्हें माइंड में रखना है कि तुम्हें विद इन, जब स्टार्ट करोगे ना प्रिपरेशन, तो माइंड में ये रह के चलना है कि तुम्हें विद इन 500 लाना है। समझे? फिर जैसे अलोंग द मतलब पाथ, जब तुम्हें लग रहा हो कि हाँ अभी प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक चल रहा है, मेरे टेस्ट सीरीज में रैंक आ रहे हैं, ठीक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, तो वो टारगेट को कम कम करते रहना चाहिए। 500, 400, 300, 200, 100। मैं बोल रहा हूँ, जब मैं लास्ट में जब था ना, लास्ट स्टेज में, तो मुझे लग रहा था कि हाँ भाई रैंक तो ला सकते हैं, अच्छा रैंक ला सकते हैं। क्योंकि टेस्ट सीरीज में तुम जब देखो ना, तुम्हें पता चल जाए कि कितने तक का कंपटीशन है। तो मुझे पता चल गया था कि कंपटीशन इतने तक का ही है, अगर दिन अच्छा गया तो अच्छा रैंक आ जाएगा। समझे ना? तो इतना टेंशन मतलब कि तुम एनआईटी में हो, मतलब अच्छा पढ़ो, इजीली तुम्हें आईआईटी बॉम्बे मिलेंगे। और ये आईआईटी बॉम्बे का जो अभी भी बोल रहा हूँ मैं, सर्च करना अभी नेट में, आईआईटी बॉम्बे का जो एवरेज पैकेज है ना केमिकल का, वो अराउंड 8 से 12 लाख के अंदर है, जो कि हमारा केमिकल से बहुत ज्यादा है। समझे ना? और वो है कि एमटेक में वहां नहीं है कि वहां सॉफ्टवेयर वाले भी घुस जाते हैं। समझे ना? हमारा क्या है, हमारा एवरेज अगर 6 भी लिखा होगा ना, तो उसमें कोर वाले होंगे भी होंगे, नॉन कोर वाले भी होंगे। लेकिन जो एमटेक का जो प्लेसमेंट होता है आईआईटी बॉम्बे का, वो सिर्फ कोर का होता है। समझे ना? तो अगर कोर में तुम्हें 8 से 12 लाख भी मिला ना, तो बहुत ज्यादा होता है। समझे ना? तो अगर तुम ऐसे ही सोचोगे, तो अगर 5 लाख का नौकरी पाए आरती में, या 6 लाख का पाए, कि कुछ भी 6 लाख 7 लाख पाए, तो तुम्हारा 1-2 साल में वो इंक्रीमेंट हो के कितना हो पाएगा? 8 लाख 9 लाख हो पाएगा मैक्स मैक्स। और कितना हो पाएगा? इतना होगा ना। लेकिन तुम समझ जाओ कि वो भी इतना मेहनत करने के बाद। कंपनी में ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ रहे हो, कंपनी में है कि तुम्हें अपना मेन पावर देना है, तुम्हारा खुद का पावर देना है, तुम्हारा खुद का एनर्जी खत्म होगा, डेली 8 घंटा 10 घंटा काम करना पड़ेगा। समझे? तो अगर तुम उतने ही टाइम अगर तुम अपने एमटेक को दिए, अच्छे से पढ़े, सीजी अच्छे लाए, तो आई कैन एश्योर यू कि तुम्हारा जो एमटेक का जो प्लेसमेंट होगा आईआईटी बॉम्बे, वो कहीं गुना ज्यादा होगा। अगर तुम्हें ये बिलीव नहीं हो रहा है, अगर तुम प्रिपरेशन के टाइम कर रहे हो, तो खुद सर्च करो, अपना पीसी को पूछो, हमारा जो पीसी है उसको पूछो कि आईआईटी बॉम्बे में कौन से कंपनी इस बार गए थे। हुआ इस बार आया था एक तो कौन सा, नवीन नवीन फ्लोरिन हुआ, वो हमारा जो पीसी है वो कॉल किया था, वो मना कर दिया कि हम लोग अभी एनआईटी से नहीं ले रहे हैं। तो वो जब चेक किया, तो वो आईआईटी बॉम्बे से एमटेक बच्चे लोग को उठाया है 17 लाख में, 2-3 बच्चे को। तो ऐसा नहीं है कि एमटेक में अपॉर्चुनिटी कम मिलते हैं, एमटेक में अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। प्रॉब्लम है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बीएचयू, ये सब के लिए 800-900-1000 रैंक भी हो जाएगा। वह आईआईटी गांधीनगर, ये सब में नहीं करना है। करना है तो अच्छी जगह पे करना है। समझे? देखो कोई रिस्क नहीं है, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ जा रहे हो, अगर तुम गेट नहीं किए तो तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। देखो तुम अपना टाइम ऐसे भी वेस्ट करते थे, सीरीज देखते थे, यहाँ वहाँ बकवास चीज करते थे, उसके बजाय अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। एक चांस दो खुद को एक चांस दो अच्छी जगह पे जाने का। अगर नहीं हो पाया तो ऑन कैंपस तो है ही ना, ऐसे भी तुम तो ऑन कैंपस में बैठने वाले थे, ऑन कैंपस में नौकरी लगने वाला था। सोच लेना कि हाँ कम से कम ट्राई तो किया मैंने। अगर तुम्हारा सोच लो कि तुम्हारा रैंक अच्छा नहीं आया, पीएसयू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो कम से कम खुद को ऐसे तो कर पाओगे कि हाँ कम से कम ट्राई किया मैंने, मुझे तो कुछ तो आता है मुझे बाकी बच्चे लोग से। समझे ना? तो ये फीलिंग इंपॉर्टेंट है। समझे? मतलब हो सकते हैं कुछ बच्चे होंगे जिनको मतलब फर्क नहीं पड़ता हो कि हाँ जॉब तो जॉब होता है, वो भी सही है।
वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि तुम्हारा सेटिस्फाई हो क्या तुम अगर जेई मेन के टाइम जो तुम सोच के निकले थे कि मुझे यहाँ पे जाना है, तुम अभी जहाँ हो सेटिस्फाई हो क्या, ये अगर खुद को पूछे और हाँ में आंसर आया तो ठीक है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बच्चे लोग, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, सबको पता है ना। तो कोई 1 करोड़ में भी दुखी रह सकता है, कोई 10,000 में खुश रह सकता है, वहाँ तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि तुम जो चाहते हो तुम्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा है तो लगो उसके ऊपर, कॉम्प्रोमाइज करो मत करो, खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। फिर तुम्हें आंसर मिल जाएगा, जो भी करना चाहते हो कर लो। और एक और क्वेश्चन था। हाँ पूछो। एमटेक करना जरूरी है क्या बी के बाद? नहीं, कुछ जरूरी नहीं है। क्या उसके बाद क्या करना है तुम्हें, तुम सोचे हो? जॉब, नहीं, पीएचडी, अभी तक आरएनडी? आइडिया नहीं है कौन। देखो ये सबसे बेस्ट, तुम कौन सा ईयर है तुम्हारा? सेकेंड ईयर। हाँ देखो, जो जो सेकेंड ईयर का टाइम है ना, सबसे बेस्ट टाइम है, समझे ना तुम्हारा। मैं क्या था कि फर्स्ट ईयर में ही सब एक्सप्लोर कर दिया था। मैं वेब में कोडिंग थोड़ा सा मुझे आइडिया था, कोडिंग में कर रहा था। वह आरएनडी क्या होता है, मैनेजमेंट काम क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको ऐसा होता है कि काम जाए भाड़ में, पैसा चाहिए, वह पैसा इंपॉर्टेंट है, वह पैसा में खुशी मिल सकती है। तो वो अगर है तो एमबीए करो, पीएसयू जाओ, ये सब है, वह बहुत अच्छा है। पैसा कितना है पता है, मतलब सोच नहीं सकते हो इतना पैसा आएगा तुम्हारे पास, वह। और अगर सोच सोच रहे हो कि नहीं पैसा तो ठीक है लेकिन पैशन फॉलो करना है, टीचिंग में जाना है, या कुछ आरएनडी में जाना है, रिसर्च करना है, पीएचडी करना है, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो ढूंढो, खुद खुद ढूंढो। गेट के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। अगर तुम्हें देखो, अगर तुम्हें आरएनडी में जाना है तो बीटेक वाले को आरएनडी में नहीं लेते हैं, उसके लिए मिनिमम एमटेक या पीएचडी चाहिए। तो तुम आरएनडी में जा ही नहीं सकते। आरएनडी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सभी कंपनी का खुद का आरएनडी डिपार्टमेंट होता है। इंडिया में ये थोड़ा सा कम है, क्योंकि इंडिया में फंडिंग्स कम आते हैं, गवर्नमेंट से फंडिंग्स कम आते हैं, प्राइवेट से फंडिंग्स कम आते हैं, तो कम होते हैं, लेकिन होते हैं। वह बार्क में जो है तुम्हारा वो साइंटिस्ट ऑफिसर, उसका पोस्ट का नाम है, समझे। तुम अगर इसरो में गए, सीट्स निकलते हैं केमिकल के लिए, 2-3 निकलते हैं, एनपीसीएल का न्यूक्लियर निकलता है ना, वो सब अच्छे अच्छे पोस्ट निकलते हैं, आरएनडी का पोस्ट निकलता है, समझे। जो तुम अगर आईटी बॉम्बे में गए, वहां सिर्फ आरएनडी Hello, Siddharth. Yeah, hello, Swagat. Siddharth is facing some network issues. Okay, I guess that's the same issue with Pratik Bhai also. He has left the meeting, I feel. Yeah, by mistake. No, he is there. He is there. Might be disconnected also. Hello. Yeah, Bhaiya rejoined. हेलो। हाँ भैया, नहीं नहीं। हाँ हाँ, बोलो बोलो। और किसी को कुछ पूछना Any है? other questions? मिलन, हाँ मिलन कुछ पूछ रहा था। हाँ भैया, हेलो। हाँ दिस इज मिलिंद सामंत है। मैं पहले तो ये बोलूँगा कि दिस वाज अ रियली रियली ग्रेट सेशन। लाइक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जो कि मैंने अटेंड किया हुआ है अभी तक। एंड थैंक यू। मैं खुद विद्वान का हूँ, सो लाइक वो भी एक Okay. टाइम में उधर से भी आपका जूनियर। एंड तो कौन से ईयर पे हो, कौन से ईयर में हो, कौन से ईयर हाँ, सो अभी? मैं पूछ रहा था कि अभी मैं अभी सेकंड में हूँ। ओके 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 ओके, हाँ पूछो बोलो। हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि आप जो प्रिपेयर कर रहे थे, तो लाइक हम्म सपोज हम लोग का भी सेकंड ईयर खत्म
हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अभी हम लोग थर्ड ईयर में जाएंगे। हमने जितना भी सेकंड ईयर का पढ़ा हुआ है वो थ्रू आउट द ईयर मतलब होगा ही कि वो धीरे धीरे मतलब चल पीछे से निकलता जाएगा। तो आप सेकेंड ईयर का चीज़ थर्ड ईयर में रिवाइज करते थे मतलब जब प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया, या फिर बस थर्ड ईयर का आपने फोकस किया देन फोर्थ ईयर एंड देन एंड की तरफ आपने मतलब पीछे का सब रिवाइज करना स्टार्ट किया? हाँ, बोल मैं पूरा 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 बोल रहा हूँ मैं कैसे करता था। ओके सुनो, अभी तुम विद्वान कहा तो मैं एक तो बात बोलता हूँ इंटरेस्टिंग। जेआरटी पता है ना? तो उसका मेरे साथ थोड़ा सा ऐसे झगड़ा हो गया था वह। तो वो मुझे ऐसे गुस्से में बोला था कि केवीपीए के लेके, वह केवीपीए में था ना 11 क्लास 12 क्लास में। वह तो मैं ऐसे सर को बोला कि सर सिलेबस खत्म नहीं हुआ 12 का तो करा दीजिए, नवंबर में एग्जाम है। केवीपीए कब होता था? दिवाली के टाइम होता था, नवंबर नहीं, सितंबर या अक्टूबर हो। तो मुझे गुस्सा के बोला था तेरे से केवीपीए जीवन भर में नहीं होगा, वह तो आईआईएससी जा ही नहीं पाएगा, समझे? तो अभी लेकिन मेरा इतना रैंक आया है कि मुझे लग रहा ये है सेम चीज एमटेक मैंने हो भी सुना जाएगा। हुआ है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीज जो इम्पॉसिबल हो लग रहा हो उस टाइम, तो अभी वैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ सही नहीं है हुआ। क्योंकि तुम जितने ऊपर की तरफ जाओगे ना उतना कंपटीशन कम होते होते जाएगा। लेकिन एक तो प्रॉब्लम है, तुम जितना ऊपर जाओगे ना उतना एब्स्ट्रैक्ट होते होते ही जाएगा। मतलब तुमको पाथ देख, सुनो, बीटेक तक का सबको पता होता है कि क्या कब करना है, बीटेक के बाद क्या करना है किसी को, मतलब एमटेक करना है कहाँ से करना है, क्या करना है, पीएचडी क्या होता है, पीएचडी के बाद क्या है, किसको पता नहीं है। रीजन के क्योंकि कोई उतना तक पहुंचा ही नहीं है, समझे? तुम कोरा पे पढ़ोगे, जितने कोरा पे आंसर देते हैं, कितने पीएचडी देते हैं ना, कुछ कुछ देते हैं, सिर्फ वही आइडिया दे सकते हैं, ज्यादा तक तो दे नहीं सकते। तुम्हारे दोस्त को पूछोगे कि अबे पीएचडी करूंगा, वो क्या पूछेगा, बोलेगा तुम आंसर क्या देगा, कुछ दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा ना। तो छोड़ो, जितना ऊपर तक जाओगे कंपटीशन कम होगा, लेकिन तुम्हें मतलब एब्स्ट्रैक्ट में चले जाओगे तुम, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब भूल भूल है कि क्या करना है, क्या अब क्या करना है। वह छोड़ो, अभी तुम्हारे क्वेश्चन पे क्या होता था कि हमारा जो बीटेक करिकुलम है ना इतना डिफिकल्ट नहीं है हुआ। मतलब कॉम्पेटिटिवली तुम्हारा कोई दोस्त पढ़ रहा होगा जो एसआरएम वीआईटी में पढ़ रहा होगा ना, तो उनको पूछना कि उनका कैसे करिकुलम होता है। उनका ऐसा होता है कि एक सेमिस्टर में 4 5 6 एग्जाम होते हैं उनके। ऐसा होता है कि टर्म 1 टर्म 2 क्या क्या होता है, बहुत सारे होते हैं। तो उनका प्रॉब्लम होता है कि रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन हमारा बहुत बहुत अच्छा करिकुलम है, पढ़ाई के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम के बेसिस पे। तुम्हें मिड सेम के लिए क्या करना है कि तुम जब मिड सेम के लिए पढ़ रहे हो, समझ लो कि तुम्हारा थर्ड ईयर पे कौन सा, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में शायद सीआरई होता है, समझे? थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में अगर समझ लो सीआरई हो रहा है, तो तुम सीआरई का लेक्चर देख रहे हो एनपीटीएल पे, क्लास में जो पढ़ रहा है सुन रहे हो, क्लास में जो अच्छा लग रहा है क्लास से ग्रस्त कर रहे हो, जो एनपीटीएल से अच्छा लग रहा है एनपीटीएल से ले रहे हो। उसके साथ साथ तुम सेकेंड ईयर का फ्लूइड भी स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना, रिवाइज करना, या तुम कुछ भी बोल सकते हो कि तुम समझ लो कि पढ़े नहीं हो ठीक से। एनपीटीएल तो मुझे लग नहीं रहा होगा कोई भी देखा होगा, अगर कोई भी देखा नहीं होगा तो वो देख सकता है। उसके साथ एक एक सब्जेक्ट चल रहा है सीआरई, उसके साथ तुम पढ़ भी सकते हो। और एक बेनिफिट क्या है कि तुम्हारा हर सेमिस्टर में एक दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि गेट में नहीं होते हैं, समझे? जैसे कि सेकेंड ईयर में तुम्हारा, थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में तुम्हारा कुछ होगा, इंग्लिश होगा, इंग्लिश लैब हो, इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश होगा ना शायद। इंग्लिश रिटन एग्जाम कब होते हैं? सेकंड, वो फर्स्ट में होते हैं। सेकंड ईयर हाँ में वो एचएस सब्जेक्ट्स लैब होते हैं, लैब एचएस एचएस, करके हाँ लैब होते हैं, एचएस सब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ लैंग्वेज लैब, लैंग्वेज। एचएस सब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ एचएस सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर ऐसे कर करके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो नहीं होते हैं गेट में। तो वो सब स्किप कर दो, जो जो गेट में है वही सिर्फ सिर्फ तुम पढ़ो। समझ जाओ कि पांच पांच सब्जेक्ट्स है थर्ड ईयर में, समझे? थर्ड ईयर में 5 सब्जेक्ट्स है, वो सब तो तुम्हारा चल ही रहा है पैरेलली, वो क्लास में पढ़ रहा है। तुम मत देखो, एक्चुअली तुम अगर स्टार्टिंग से पढ़े ना तो तुम्हारे ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। तुम हर दिन एक एक भी अगर वीडियो देखे ना, हर एक एक सिर्फ एक वीडियो कितना का होता है, 50 मिनट 40 मिनट का होता है, वो भी एनपीटीएल का तुम आराम से 1.5x कर सकते हो, 1.5x 1.7.5x, एक एक वीडियो 2x भी कर सकते हो। तो वो सब भी करने के बाद भी तुम्हारा आधा घंटा 35 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, समझे ना? खत्म होने के बाद तुम देखो ना, बहुत कम टाइम मिलेगा, वह तुम आईपीएल भी देख सकते हो उसके बाद। इजी है वह, इतना इतना कोई नहीं है कि कुछ भी करोगे वह। तुम आराम से, तुम्हें फोकस करना है कि करना क्या है तुम्हें। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइफ में यही है, समझे? तुम खुद को पूछो, तुम्हें खुद पता नहीं होगा, मैं गारंटी कर रहा हूँ कि तुम्हें करना क्या है, तुम पता ही नहीं होगा। सब जॉब में बैठ रहे हैं तो तुम्हें जॉब में बैठना है, बस यही। लाइफ का कुछ मकसद नहीं है, किसी का कुछ मकसद नहीं है। तो सबका सबका दिमाग ठिकाने आता है ज्वाइनिंग के 1 साल बाद।
जब नौकरी करोगे 8-8 घंटा 9-9 घंटा 10 घंटा काम करोगे, सैलरी मिलेगा 5 लाख 6 लाख 7 लाख, फिर पता चलेगा कि अबे मुझे तो ये करना ही नहीं था, मैं कर क्यों रहा हूँ। वाह, फिर लोग आते हैं, कोई गूगल का जॉब छोड़ के यूपीएससी के लिए लगता है, कोई आईएएस के लिए लगता है, कोई गेट के लिए लगता है। तो ये ट्रूथ है। वाह, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, फेक नहीं रहा हूँ मैं। ये तुम सीनियर से पूछना, जो जो एग्जाम वाले से नहीं, वाह उनका अच्छा लाइफ होता है, एग्जाम वाले से नहीं। वाह, जो मतलब समझ लो कि वेदांत हो गया, कि आरती हो गया, कि मैक्सिमम तो तुम सुनोगे कि अरे यार छोड़ूंगा मैं, छोड़ूंगा, छोड़ के और कुछ करना है। वाह, और जॉब करने का इतना भी डिसएडवांटेज नहीं होता है। एक तो एडवांटेज, इतना सब मैं बोला, एक तो अच्छा चीज बोल रहा हूँ। जॉब करने से एक तो अच्छा चीज होता है कि उसका जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो नेक्स्ट जॉब के लिए बहुत काम के आता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इंडिया में अभी इतना जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो गया है। तुम जाके चेक करना पेप्सी को या कुछ भी अच्छे अच्छे कंपनी का जो साइट है ना, जो ऑफ कैंपस का जो जॉब वैकेंसी निकलता है ना, वो चेक करना एक बार। मैं चेक किया था, पेप्सिको का 1 या 2 पोस्ट निकला था ऑफ कैंपस का, एक्सपीरियंस मांगा था 3 साल का। तुम्हें लग रहा है कितने जन डालेंगे उसमें? तुम्हारे जैसे 1000 पड़े हैं, समझे, 1000। वाह, सब फ्रस्ट्रेटेड हैं, सब डालेंगे उसमें। समझ रहे हो उस टाइम कितना कंपटीशन ज्यादा होगा। उस टाइम स्ट्रगल करने से अच्छा है अभी से स्ट्रगल करो। वाह, अभी बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढो अभी। मैं ऐसे गेट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वाह गेट के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, अलग कुछ भी अलग, जो मतलब एवरेज से एवो एवरेज हो, बिलो एवरेज नहीं, या एवरेज भी नहीं, क्योंकि तुम्हें एवरेज बिलो एवरेज बन के नहीं रहना है, समझे ना। तुम एनआईटी में आए हो तो सोच लो कि यू आर विद इन 0.2%, समझे। तो तुम ऐसा कुछ मत करो कि तुम्हें बाकी की जो इन्फोसिस में बैठा हो, जो डेलोइट में बैठा हो, जो जो समझ रहे हो ना, जो बाकी कॉलेज से भी हायर करते हैं, कीट हो गया, कुछ भी प्राइवेट कॉलेज हो गए हैं, तुम्हें उनके साथ काम नहीं करना है। ये मैं बोल रहा हूँ, इन्फीरियर नहीं हूँ मैं, बस बोल रहा हूँ कि तुम्हें अपना लेवल घटाना नहीं है, बढ़ाना है, समझ रहे हो, जितना लेवल बढ़ा सकते हो, समझे। चलो, और कोई? और एक भैया मैं पूछ रहा था कि सब्जेक्ट्स मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट लाइक थोड़ा प्राइम फोकस करना बेटर रहेगा, लाइक प्राइम मतलब देखो, प्राइम second year फोकस से सब, हाँ सेकेंड ईयर से नहीं, मतलब सेकंड ईयर में तो लाइक सीआरई वीआरई इतना पता है कि लाइक इम्पोर्टेंट होता नहीं है। नहीं, सेकेंड ईयर में देखो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें कॉलेज के साथ चलना है, जो भी सेकेंड ईयर में अभी है। पहले तो मैं बोलूंगा कि मेरे बात में ना आके फिर पहले खुद एक्सप्लोर करे कि क्या क्या चीज होता है। अभी तो क्या सेकेंड ईयर खत्म हुआ तुम्हारा? हाँ, खत्म होगा हाँ अभी, तो एग्जाम हाँ, जब भी होगा। अभी एग्जाम खत्म होने दो, 1 महीने घर पे बैठो, चिल मारो, फिर ढूंढो कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर मैं कैंपस कॉलेज में अगर ऑन कैंपस बैठूं तो सीनियर से पूछो, पीसी से पूछो कि कैसा कैसा जॉब आता है, कितने कितने का जॉब आता है। एमबीए में पूछो कि एमबीए में कैसा पढ़ाई होता है, क्या पढ़ाई होता है। तुम्हें अगर ऐसे बिजनेस रिलेटेड कुछ माइंड है तुम्हारा, पैसा वैसा अच्छा लगता है तुम्हें, हाँ तो देखो कि एमबीए में मैनेजमेंट स्किल्स तुम्हारा अच्छा लगता है, वो सब करना, तो वहाँ कैसा अपॉर्चुनिटीज है। अगर समझो कि तुम्हें आरएनडी में जाना है, साइंटिस्ट बनना है, कुछ भी करना है, तो गेट के बारे में देखो, समझे ना। अगर तुम्हें सिविल सर्वेंट बनना है, यूपीएससी करना है, तो यूपीएससी के बारे में ढूंढो। अभी तुम्हारा टाइम है एक्सप्लोर करने का। अभी एकदम से एक्चुअली होता क्या है, देखो मैं जिससे भी बोलता हूँ ना, कुछ भी मेरा बात नहीं है, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर या जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो भी बोलते हैं कुछ, तो एकदम से हम लोग रिएक्ट करने लग जाते हैं कि हाँ यही करना है। एक्चुअली ये करना नहीं है, वो अपना स्टोरी बता रहा है, तुम्हें उससे एक्सटेंड करके खुद का स्टोरी खुद लिखना है, समझे। ऐसा नहीं है कि वो जो बोला वही करना है, समझे ना। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना, तो वो ऐसा है कि ये अपॉर्चुनिटीज है, समझे। तुम्हें अपना अपॉर्चुनिटीज खुद सोचना है कि हाँ हाँ ये सब मेरे लिए हो सकता है, ये सब अच्छा है। तो अभी पहले क्या करो कि पहले तो सोच लो कि क्या करना है, सोच लिए हाँ गेट करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप है कि क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। केमिकल बच्चे लोग का एक बेनिफिट ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्यादा नहीं है, समझे ना। तो तुम अगर सेल्फ स्टडी भी किया ना, तो भी तुम आगे निकल सकते हो बाकी बच्चों से, समझे। अगर समझ लो कि तुम मेड इजी में होते, सॉरी अगर मैकेनिकल में होते, इलेक्ट्रिकल में होते, तो बहुत सारे मेड इजी में हर साल 80,000 बच्चे होते हैं, 80,000। बहुत सारे ड्रॉप आउट होते हैं, बहुत होते हैं। उनका नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स मैकेनिकल का अराउंड 2 लाख होते हैं, इलेक्ट्रिकल का अराउंड 1 लाख होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अराउंड 1 लाख होता है। तो वहाँ कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है। हम लोग का कितना होता है? 17,000। तो तुम्हें क्या करना है कि देख लिए सेल्फ स्टडी के लिए क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है। तुम सोचो कि सब्सक्राइब कर सकते हो ऑन अकेडमी, गेट अकेडमी में। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, तुम्हारा पॉकेट मनी ज्यादा है, खरीद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वहां देखो क्या क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है। फिर बेसिक चीज सेम है, नोट्स बनाना है, कहाँ से बनाना है तुम्हारे ऊपर। मेरा ऐसा था कि मुझे पढ़ाई पे थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा था, तो मैं एनपीटीएल से खुद पढ़ता था, समझे ना। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं पीएसयू जॉब चाहिए, जैसे भी करके एग्जाम निकालना है, तो गेट एकेडमी ज्वाइन करो, अन अकेडमी ज्वाइन करो, वहां जो जो पढ़ा रहे हैं वो नोट्स बनाओ, फिर देखो वो क्या क्या स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं, समझे ना। एक्चुअली मेरा स्ट्रेटेजी में इसलिए किसी को ऐसे बताता नहीं हूँ क्योंकि बहुत वेग टाइप है, समझे। मैं क्योंकि मैं सेकंड ईयर से ही पढ़ रहा था। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सबको बोलूँ कि सेकंड ईयर से ही पढ़ो, जो नहीं पढ़ा है उनका होगा नहीं कभी, ये नहीं होता है, समझे ना। क्योंकि मेरा जो दोस्त है विजन है, वो 1 साल पढ़ा था सिर्फ, समझे ना। उसका 81 रैंक है। वो भी देखो, जो 81 लाए वो 50 भी ला सकता है, समझे। जो 50 लाए वो 40 भी ला सकता है, ऐसा नहीं है। लक साथ देना चाहिए, एक एक बार तो कम भी रैंक आ सकता है, मतलब। लेकिन समझ सकते हो कि बिलो 100 मतलब ऑब्वियसली अच्छा ही है। तो समझ लो कि 1 साल में भी क्रैक किया जा सकता है, लेकिन समझ, नोट्स प्रिपेयर होना चाहिए, नोट्स अच्छा होना चाहिए तुम्हारा, जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। ऐसा नहीं है कि पढ़ रहे हो जॉब लग गया छोड़ दिया पढ़ना, टोटली यूजलेस है। ऐसा मत करना, कोई भी मत करना। गेट के लिए नहीं पढ़ रहे हो मत पढ़ो, लेकिन ऐसा मत करना कि पढ़ रहे हो फिर लास्ट को और 3 महीने 4 महीने है छोड़ दिए। ऐसा है कि हाँ एग्जाम लग गया कि और कोई एचसीएल आया 12 लाख 13 लाख 14 लाख का मिल गया, तो ठीक है वह, तो छोड़ सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख का मिल गया छोड़ दिए। हुआ मेरा, बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल का मेरा दोस्त है, उसका लगा था डिजिटल एनालॉग 22 लाख। उसका ऑल इंडिया रैंक गेट में आया 24, समझे। मतलब उसका जॉब लगा था सितंबर में, वो सितंबर से लेकर फरवरी तक गेट के लिए पढ़ा है। क्यों लग रहा है, क्यों पढ़ा होगा वो? वाह, ये सोचो हुआ कि ऐसे हर 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 वक्त, मतलब ऐसे नहीं है कि ऑन कैंपस में जो लग गया उसके लिए स्टिक। अगर देखो तुम अगर गेट में रैंक ला रहे हो ना, तो तुम्हारे ऊपर एक एक्स्ट्रा एक ऑनर लिख रहा है, तो एक्स्ट्रा बेज लग रहा है कि वो एक नेशनल लेवल कंपटीशन में एक कुछ किया है ये, समझे ना। तो तुम्हें वो कुछ भी, मतलब तुमसे बात करने से पहले वो सोचेगा कि हाँ ये पढ़ा तो होगा कुछ, वह पढ़ा तो होगा। लेकिन तुम अगर सोच रहे हो कि ऑन कैंपस से लेके तुम मतलब नहीं गेट नहीं दोगे, तो थोड़ा सा ये बुरा है, समझे ना, ये नहीं करना चाहिए। तो प्रिपरेशन का बोल रहा हूँ मैं, एनपीटीएल में पढ़ो। मैं इसके बाद जो जो इंटरेस्टेड हैं, 1 महीना 2 महीना लो। अभी एकदम से मुझे कोई मैसेज मत कर देना, मुझे पता है बहुत करेंगे फिर पढ़ेगा नहीं कोई। बहुत करते हैं वहाँ, फिर कोई नहीं पढ़ता है वहाँ। 1-2 टाइम लेते पढ़े। तुम पहले मेंटली श्योर हो जाओ कि एक्चुअली करना क्या है तुम्हें, फिर तुम्हें 2 महीने एग्जाम खत्म होने के बाद हुआ नंबर होगा तुम्हारे दोस्त जो ऑर्गेनाइज किएंगे, तुम्हारे प्रेसिडेंट के पास नंबर होगा, सीनियर के पास नंबर होगा, जिससे भी नंबर ले लो, डायरेक्टली मैसेज करो, ऐसा कुछ फॉर्मेलिटी नहीं है। डायरेक्टली मैसेज करो, भैया क्या कहाँ से क्या पढ़ना है, कौन सा क्या से, मैं तुम्हें देखो एट द एंड तुम्हें सब करना है। मैं तुम्हें अच्छा रिसोर्सेज बता सकता हूँ कि जहां से मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। सीआरई का अभी मैं एक तो बोलता हूँ, आईआईटी मद्रास का एक है कृष्ण नैया, वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर, मतलब मैं जो सुना हूँ आज तक का, समझना। वो तुम पढ़ सकते हो। तुम अगर वो सब पढ़ोगे ना, तो तुम्हारा इंटरेस्ट जो तुमसे लग रहा होगा ना कि ये सब बेकार चीज है क्यों पढ़ रहे हैं, वो सब मतलब इंटरेस्टिंग लगने लगे। तो यही है, तुम सोचो पहले, तुम मेंटली श्योर हो जाओ, फिर बात करना, अच्छे से बात करेंगे। और किसी को कुछ? भैया एक पूछना था एक चीज। हाँ बोलो। देखिए आप जैसे बोले पीएसयू का बात, सोचो कि अगर पीएसयू में किसी को मिल रहा है, जैसे कि अभी हम लोग आए हैं पारादीप, तो हम्म अभी हम लोग आईओसीएल देखे, लाइक हम्म ये लाइफस्टाइल तो नहीं चाहिए किसी को भी, हाँ मतलब मेरे को तो ऑब्वियस नहीं चाहिए नहीं ऐसा चाहिए। लाइफस्टाइल। हम्म मतलब या एक तो लोकेशन सही नहीं है, ना दोस्तों से उतना इंटरेक्शन होगा, हाँ, मैं ये मतलब मैं पॉइंट नए रखा ना दोस्त कि नया आप चीज तो समझ गया बट सुनो। हाँ सुनो भैया। सुनो, मैं ये तुम्हें उस टाइम बोला ना कि तुम्हारा जो कोल इंडिया है, अगर ये सब जगह पे मिला तो बहुत खराब लोकेशन मिलता है। वो कोल इंडिया हो गया, आईओसीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, अनाल्को हो गया, खराब लोकेशन मिलता है। लेकिन तुम ऐसा सोचो कि तुम्हें वहां जाना ही नहीं है। अगर वहां जाना नहीं है तो कहाँ जाना है? एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर प्लांट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वाह। तुम्हारा बार्क, समझ गए, डीआरडीओ, इसरो। इसरो का क्या होता है कि हर साल नहीं निकलता वैकेंसी, उसका केमिकल में किसी किसी साल निकलता है वो, तो इसरो छोड़ दो। बाकी बार्क का हर साल 22 निकलता है, समझे। तुम्हारा एनपीसीएल का निकलता है हर साल कम से कम, वाह। और बाकी का तुम्हारा रहा, अगर तुम्हें आईआईसी जाना है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें आरएनडी में जाना है, समझे, अगर कॉर्पोरेट लाइन में जाना है, आरएनडी में जाना है, तो तुम आराम से आईआईसी बेंगलोर में जा सकते हो, आईआईटी बॉम्बे में जा सकते हो। मेन बात ये है कि तुम्हें बीटेक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकता है, मिलेगा या नहीं।
अगर ये एनसेट में हाँ में मिल रहा है तो आई गेस तुम्हें और 2 साल इन्वेस्ट करना है, क्योंकि 21-22 साल कोई मतलब इतना भी कोई ज्यादा बूढ़े नहीं हो रहे हो कि अभी जॉब चाहिए, समझे ना। और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें फैमिली से पैसा मांगना पड़ेगा, क्योंकि स्टाइपेंड से तुम्हारा निकल जाएगा सारा, समझे ना। तो तुम्हें अगर लग रहा है कि यहाँ तुम्हें 5-6 लाख का जॉब मिल रहा है, उससे बेटर मैं बोल रहा हूँ कि ट्राई कर लो, क्या हो जा रहा है। वहां भी अगर 5-6 लाख मिलेगा तो क्या, अगर वर्स्ट केस में उतना नहीं मिलता है, समझे। एवरेज उनका है 8 से 12 लाख एवरेज, समझे ना। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि वहां जाने के बाद मुझे यहाँ से ज्यादा मिलेगा, यहाँ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, तो ट्राई कर देना चाहिए, मुझे जो लग रहा है वो। लेकिन तुम अगर बोलो कि 2 साल और कौन पढ़ाई करेगा, ये एक्चुअली ये डिपेंड करता है वो। क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है कि जॉब से ज्यादा कंफर्टेबल मैं पढ़ाई में हूँ, समझे। क्योंकि पढ़ाई में तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है नहीं पढ़ूंगा, अभी पढ़ने का मन करे पढ़ूंगा। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं है ना, मन हो ना हो तुम्हें 8 घंटा काम करना ही है, समझे। तो ऐसा तुम्हें अगर फ्लेक्सिबिलिटी वाला अगर चाहिए तो मुझे लग रहा है कि 2 साल इन्वेस्ट करना इतना बुरा भी नहीं है, समझे। ये मतलब स्टार मार कर डिस्क्लेमर है कि इसमें ली से, समझे। तो मैं ये ठीक है, आई कैन एडजस्ट विद इट, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम खुश रह सकते हो, ऐसे कुछ मतलब बोला ना, हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड, समझे ना। हाँ भैया। और किसी पूछना है कुछ? भैया साइमल्टेनियसली पढ़ सकते हैं क्या, लाइक उसका कुछ पॉसिबिलिटी है कि लाइक हेलो एट। हेलो एक्चुअली फिर से स्टार्ट करा, सुना नहीं दिया। हाँ बोलो। हाँ लाइक ये बस हेलो मतलब पता है नहीं होने वाला है। हेलो हाँ, बट स्टिल लाइक ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि आप गेट के लिए पढ़ रहे हो एंड स्टिल साइड बाय साइड आप अरे कैट भैया की का शायद सिमिलर एग्जाम्स के नेटवर्क लिए इशू कुछ। है, वो नहीं है। वेट में ओह कट गया है नेटवर्क, थोड़ा वेट कर, रीजॉइन कर रहा हूँ। हाँ मिलन आगे भैया। हाँ भैया ज्वाइन किया क्या वापस? हाँ हाँ आज कर। हाँ मैं पूछ रहा था कि सपोज हम लोग गेट के लिए पढ़ रहे हैं एंड ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या कि साइड बाय साइड कैट के कुछ अलग एग्जाम के लिए साइड बाय साइड पढ़ना, वैसा पॉसिबल होता है? एक्चुअली देखो ये मेरे बस का तो था नहीं, समझे, कि 2 साथ एक साथ मतलब दो एक तो इंटरेस्टिंग स्टोरी बोल रहा हूँ, मस्त इंसिडेंट है। मेरा एक दोस्त एमबीए के लिए पढ़ रहा था, मतलब वो एनआईटी राउरकेला का है ना, साइड में कुछ आया था कि वो टाइम्स नाउ या कुछ है राउरकेला में कोचिंग, तो वहाँ वो डिस्टेंस में या जा भी रहा था कोर्स करने। तो वो एमबीए के लिए फुल्ली डेडिकेटेड था सेकंड ईयर से। तो वो एलएनटी के लिए इंटरव्यू में बैठा है। तो उसको 2-3 क्वेश्चन पूछे, कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसको मतलब उसको इंसल्ट करने के लिए और भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो तो वो लास्ट को खुद बोल रहा है कि सॉरी सर, आई वाज प्रिपेयरिंग, आई एम फुल्ली डेडिकेटेड फॉर एमबीए, कि ऐसे कुछ मैं मतलब ऐसे प्रिपेयर नहीं हो रहा हूँ, तो मुझे ये सब याद नहीं है, समझे। तो ऐसा भी इंसिडेंट हो सकता है, समझे, कि तुम एमबीए के लिए फुल्ली प्रिपेयर कर रहे हो लेकिन तुम्हें कुछ आता नहीं है कोर के लिए, और कोर के लिए भी ट्राई कर रहे हो, तो ये हालत होगा। तो ऐसा समझ जाओ कि अगर तुम्हें एमबीए गेट 2 साथ भी एक साथ अगर दो दो नाव में पैर रखोगे तो एक्चुअली ये सब मतलब ऐसे इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, समझे ना। अगर तुम कर सकते हो तो कर पाओगे, लेकिन तुम्हें खुद के ऊपर वो देखना पड़ेगा, खुद को जज करना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है या नहीं। मेरे लिए नहीं था, समझे ना, क्योंकि मैं बोला ना मेरा एफिशिएंसी बहुत कम है हुआ, मुझे मतलब ज्यादा टाइम चाहिए एक चीज को करने के लिए हुआ। तो एक को अगर लगता है कि वो कर सकता है दोनों चीज, लेकिन करना ही क्यों है, मतलब दोनों अलग अलग फील्ड है ना। अगर तुम दोनों कर रहे हो इसका मतलब है कि तुम्हें एक तो बोला ना, सेंटेंस यूज किया ना, क्रिस्टल क्लियर माइंड होना चाहिए कि एक्चुअल तुम्हें करना क्या है। तुम अगर दोनों वे में जा रहे हो तो दोनों वे तो ऐसा नहीं है कि कोरिलेटेड है, रिलेशन तो दूर दूर तक है ही नहीं इसमें। एक तो एमबीए है, एक तो केमिकल इंजीनियरिंग है। तो ऐसा मत करो, मैं प्रेस्क्राइब करूंगा कि ऐसा कुछ मतलब कुछ फायदा नहीं है करके, समझे। तुम 2-3 महीना ले लो, दोनों एक साथ प्रिपेयर करो, देखो जिस चीज में प्रिपेयर करने का ज्यादा मन हो उसमें करना, जो मतलब ज्यादा दिल लगे, दूसरे को छोड़ देना, समझे।
हाँ भैया। हाँ, uh, और कोई है? नहीं भाई, और कोई नहीं है. एंड uh, अभी so I think like we can end the meeting now. हाँ, ओके. Yes sir. So Actually, before खतरनाक. ending the before बोल ending बोल. the meeting, I will request everyone like जो वीडियो ऑन कर सकते थोड़ा कर ले, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट. वो एक बार करेंगे. जो वीडियो ऑन कर सकते हैं थोड़ा कर लीजिए, अच्छा रहेगा. तो स्माइल से चीज. अगर ले लिया ना फोटो. हाँ हाँ मैं ले लिया. थैंक यू सो मच भैया अच्छा दोनों में. for भैया everything. बहुत सही. Really it was inspiring. पूरा रियलिटी का स्वाद आ गया. खतरनाक मोटिवेशनल था. आधे टाइम ऐसा लगा Realistic. कि हमारा स्टोरी वापस सुन रहे थे फर्स्ट सेकंड ईयर का. हाँ, फर्स्ट ईयर का तो पूरा, सेकंड ईयर तो फील ही नहीं. फर्स्ट ईयर का तो पूरा. अरे भाई मेरे को तो अभी लग रहा है मैं फर्स्ट ईयर में हूँ. चलो चलो, ऑल द बेस्ट गाइस. ओके, बाकी आप सब अच्छे से करना. कॉन्वो में पक्का थैंक यू आना. भैया. आपको हाँ, भी चलो, ऑल द बेस्ट भैया. चलो. और भैया एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट. अरे यार, एग्जाम मतलब ऑल द बेस्ट. thanks, formality मतलब है, एग्जाम्स formality. परसों है और आप अभी एग्जाम्स अटेंड कर था रहे हो. फिर भी आप अटेंड किए तो थैंक्स. थैंक यू भैया उसके लिए एक्चुअली. हाँ, चलो चलो, कोई बात नहीं. Can't अभी thank you आपका enough. हो जाने दो मुझे. आपका तो टॉक के हिसाब से हो गया होगा प्रिपरेशन पूरा ना. अरे नहीं रे, वो गेट के बाद और मतलब थोड़ा सा अभी डाउन हूँ अभी. अभी थोड़ा सा पढ़ने का मूड नहीं है. देखते हैं, पढ़ेंगे थोड़ा सा. ऑनलाइन एग्जाम है ना, इसलिए भी. ऑनलाइन में क्या मतलब स्ट्रिक्ट है, मतलब थोड़ा नहीं, बोलता है रिकॉर्डिंग बंद कर. स्वागत स्वागत, रिकॉर्डिंग बंद कर.